माइंड कि व्हेन यू जस्ट गो इनटू द मार्केट, थिंक कि तुम्हारे सामने वाला 10 साल का बच्चा ही है। यू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस इनटू दैट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर। तो दैट्स वन ऑफ द गुड लेसन आई टीच फ्रॉम, जो मेरे को सिखाया बहुत अच्छे थे इंद्रजीत वाधवा। आज भी मैं उनके टच में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इस तरह से लेसन सिखाया कि नहीं, यू गो इन द मार्केट विदाउट एनी हेजिटेशन और थिंक कि ये चीज हो रही है। और सेकंड थिंग, यू टेक इन योर माइंड, अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, यू डू ए मार्केटिंग या यू डू एनी ऑफ द डील्स, इफ यू गॉट द फ्रंट चेयर of any of the person, so that's the equal chair. So if you are sitting in front of IAS, Hello and welcome to another episode of Value Seller Talks, where we bring inspiring conversation with industry leaders who are driving innovation, shaping ecosystem, and creating meaningful impact. I'm your host Deepak Bajaj, and today we have an accomplished entrepreneur and technology leader joining us, Dr. Tarun Tonk, Chief Editor and CEO of IT Voice Media Private Limited and Managing Director at Informatic Computech Private Limited. In short, we call it ICPL. With over 25 years of experience across media, IT services, mining, and industry organization, he has consistently led from the front, building impactful ventures and driving innovation across diverse sectors. His journey reflects a rare blend of entrepreneurial vision and execution excellence, enabling organizations to scale, adapt, and thrive in the dynamic markets. As a force behind IT Voice Media, India's premier IT magazine and tech news OTT news platform, he has been instrumental in shaping industry narratives, creating a powerful ecosystem that connects technology leaders, enterprises, and innovators across the country. And I must recommend you should also look into that, the writing which they are bringing for you. And at ICPL, he continues to deliver cutting edge IT solutions supporting both corporate and government clients with services ranging from a software development to digital transformation. Beyond his entrepreneurial role, he actively contributes to industry development as president of Rajasthan Information Technology Organization and serve as an independent director at Sarda Proteins Limited, while also being involved in the mining sector through snow mines and minerals. As a visionary leader with deep expertise in strategic planning, team building, and digital transformation, he is committed to fostering innovation, operational excellence, and sustainable growth. I'm excited to explore his journey, leadership philosophy, and insights on the future of technology, media, and digital transformation, which is the need of the country and across the globe. So, without losing the interest and bringing and listening right from the leader, so we welcome Dr. Tarun. Dr. Tarun, स्वागत है आपका. Welcome to the show. बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। सोचा नहीं था कि मैं इतना भी हूँ। बढ़िया है। There are इन दिस कंप्लीट माय इंट्रोडक्शंस, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक lovely. अभी भी एक बच्चा ही हूँ और टिल लास्ट तक, लाइफ तक मैं बच्चा ही रहना चाहूँगा, बिकॉज लाइफ में लर्निंग्स बहुत है और देयर इज लॉट ऑफ द वे वेयर यू कैन गो, और एवरी डे आई एम लर्निंग। तो इट्स It's टू गुड फॉर दिस कि इतना बड़ा जो आपने जो दिया मेरा इंट्रोडक्शन। आई स्टार्टेड माई लाइफ विद कंप्लीटली फ्रॉम, बहुत ले मैं अगर हूँ तो मैं अभी बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात, ब्लड ऑफ गुजरात, बट बॉर्न ऑफ राजस्थानी। तो थोड़ा सा मिक्स ब्रीड, और सीन गुजराती रोल्स इन इंडिया और गुजराती रोल्स इन वर्ल्ड। तो थोड़ा सा हम भी प्राउड करते हैं। और देन द मनी माइंड इज राजस्थानी। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आई गॉट लर्न लॉट्स ऑफ द थिंग। आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम ए जॉब, और Mhm. मैंने एक मैकेनिकल कंपनीज, इफ आई से इट्स ओसवाल ग्रुप, वहाँ से लाइफ स्टार्ट की थी आफ्टर माई नॉर्मल ग्रेजुएशन। आई मैं BSc नॉर्मल चैप, और डन सम कंप्यूटर डिप्लोमा इन 1992-93। Uh, करने के बाद में ऐसा लगा कि यार डूइंग ए जॉब, जॉब चल रहा है। फिर अच्छा चला, 1.5 साल 2 साल जॉब किया। माइनिंग इंडस्ट्रीज की गैंग शॉट्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज थी। लर्न लॉट्स ऑफ द थिंग्स।
there I was become a start with a manager और GM के नाम से I just left the company. और कुछ छोटा सा इश्यूज हो गया था. इश्यूज ये था कि जो सिस्टम था मैं सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था. देन नेक्स्ट डे आई एंजॉय माई लाइफ. एक दिन की पूरी छुट्टी मिली बिकॉज माई टाइमिंग वॉज 8:30 टू टिल नाइट 10 चलता था. मैं उनकी सारी प्रैक्टिस देखता था. एक दिन पूरा एंजॉय किया. नेक्स्ट डे समझ में आया कि नहीं, विदाउट वर्क वी कांट डू एनीथिंग. बिकॉज माई फिलोसफी थी कि वर्क लाइक ए कूली एंड लिव लाइक ए प्रिंस. ये मेरा एक ऑटो फिलोसफी रही है कि काम उस तरह से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीना मस्ती से था. 2 दिन के बाद में आई जस्ट गॉट एक, मेरे को पेपर में एक ऐड मिला कि वन ऑफ द मोदी जेरोक्स कंपनी इज लुकिंग फॉर ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. अप्लाइड. मालूम चला वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नहीं था, वो था मार्केटिंग रिसर्च एग्जीक्यूटिव. डोर टू डोर यू हैव टू गो एंड यू हैव टू जस्ट रिसर्च. आई जस्ट जॉइन दैट कंपनी. मैंने कहा जब तक कोई दूसरा नहीं मिलता तब तक ज्वाइन करो. द वन ऑफ द बेस्ट थिंग मेरे को जेरोक्स में, मोदी जेरोक्स के टाइम पे इतना अच्छा लगा कि माई सेल्स मैनेजर टीच मी लॉट्स. और उन्होंने कहा जहां तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं वहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा. जहां तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं है वहां तुम ट्राई करोगे, तुमको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा. तो आई स्टार्टेड दैट, उसकी फिलोसॉफी भी, आई स्टार्टेड द वर्क करने के साथ साथ मेरे को कुछ चीज ऐसी भी उन्होंने जो सिखाई कि व्हाट द वे ऑफ मार्केटिंग. बिकॉज आई वाज ए टोटली शाय गाय. मेरे घर में मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक एल्डर और एक यंगर सिस्टर. उनकी फ्रेंड्स आ जाती थी, मैं घर में छुप जाता था. मेरे को बहुत वो फील होता था, मैं बात नहीं कर पाता था. बट मेरा ये हेजिटेशन जो है वो जेरोक्स ने निकाला, मोदी जेरोक्स ने, कि फील्ड में मेरे को बहुत जाना पड़ा, लोगों से कनेक्ट करना पड़ा. और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. बिकॉज आई वाज ए क्रिकेट लवर और क्रिकेट में अच्छा खेलता था. तो ही टोल्ड मी, तरुण जस्ट टेक ए माइंड कि मैं जयपुर खेला हुआ था. तरुण मैं तुम्हारे को क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो मैं तुम्हारे को एक काम करता हूँ, मैं राजस्थान की रणजी ट्रॉफी से तुम्हारे को मैं खिलाता हूँ. हाउ मच रन यू कैन स्कोर. मैं कहा सर इफ एवरीथिंग इज गुड और ओके तो आई सपोज 30-40 रन तो मैं बना ही लूंगा. बोला इंडिया टीम में दिया तो मैं ऐसा डर के मारे शायद हो सकता है ऐसा पहली बॉल पे बोल दूं. देन आफ्टर ही सेज कि चलो एक चीज बताता हूँ, अब मैं तुम्हारे को एक नेक्स्ट ऑप्शन देता हूँ. यू आर इन ए कॉलोनी एंड यू गॉट ए 10 साल के तुमको बच्चे दे दिए, टेनिस की एक बॉल दे दी. हाउ मच यू रन, कितना स्कोर कर लोगे. मैं सर डेफिनेटली सेंचुरी इज देयर. तो टेक इट इन योर माइंड कि व्हेन यू जस्ट गो इनटू द मार्केट, थिंक कि तुम्हारे सामने वाला 10 साल का बच्चा ही है. यू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस इनटू दैट. तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर. तो दैट्स वन ऑफ द गुड लेसन आई टीच फ्रॉम, जो मेरे को सिखाया बहुत अच्छे थे इंद्रजीत वाधवा. आज भी मैं उनके टच में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इस तरह से लेसन सिखाया कि नहीं, यू गो इन द मार्केट विदाउट एनी हेजिटेशन और थिंक कि ये चीज हो रही है. और सेकंड थिंग, यू टेक इन योर माइंड, अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, यू डू ए मार्केटिंग या यू डू एनी ऑफ द डील्स, इफ यू गॉट द फ्रंट चेयर ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, तो दैट्स द इक्वल चेयर. तो इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ IAS, तो you treat कि you are just dealing with the IS and you are equal to that. तो don't lose your confidence. बड़ा आदमी है, बड़े लोग हैं, because everything is behind the confidence. अगर आप में confidence नहीं है तो the day first you lose your battle in your life. तो the thing is this, confidence is there. You mentioned and you touch upon a very important point जो आपने अभी mention किया. One level, other than confidence, the mindset. Yeah. That's the mindset. If you're in the right mindset clear है, and you are looking the another person at a equal level, तो वो जो conversation है, आउटकम कुछ भी हो, बट वो जो कन्वर्सेशन का वो जो मूवमेंट का जो डिस्कशंस हैं वो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है. अब रिजल्ट में, सेल्स में तो हमें पता है, या तो जीतोगे या हारोगे, लेकिन वो जो कन्वर्सेशन होती है उसमें आप एटलीस्ट हुक पे रहते हैं कि एटलीस्ट कभी ना जब रिक्वायरमेंट आएगी एक्चुअल में, तो वी विल बी द पर्सन हु विल बी कॉल्ड अपॉन. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो अभी आपने दिया. थैंक यू सो मच. एंड आई लव दैट नैरेटिव, वर्क लाइक कोहली एंड लिव लाइक अ प्रिंस. Yes. That's a lovely. No, but that's actually that's the thing. See, when you are into the work, you forget about each and everything. What I had done, when after that I just started a venture with the name of one proprietorship company, the Informatic Computer, to selling the computers. That time there is the margin of a computer sale ka
in 1997, it's almost 15 to 20,000 bucks, whereas my salary was a 5,000 bucks. तब वो एक वेंचर ऐसा लगा कि यार आई हैव टू गो इनटू दिस, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर आता था, मैंने उसको स्टार्ट भी किया. बट वन लेसन विच आई लर्न फ्रॉम मोदी जेरोक्स, इफ यू गेट द डील देन डील शुड बी योर्स. अदरवाइज उस डील को ऐसा कर दो कि कोई दूसरा ले ना पाए. कॉम्पिटिटर्स के लिए टफ चैलेंज छोड़ना जरूरी है और ईज आपको लेना है. तो आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इफ यू बिलीव कि आपके प्रोडक्ट में जितने यूएसपीज हैं, दैट्स इन योर ऑलवेज इन योर माइंड कि आपकी यूएसपी क्या है. द फर्स्ट यूएसपी कि यू आर द फर्स्ट यूएसपी, कि सर मैं हूं ना, मैं हूं ना, सर मैं हूं ना. इट्स द यूएसपी. एंड द सेकंड यूएसपी इज योर प्रोडक्ट्स, योर स्पेसिफिकेशंस. तो मैं हूं ना वाली कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छी चीज मिली. सो सर दैट आई स्टार्टेड माई वेंचर सेलिंग लॉट्स ऑफ द थिंग्स. और मल्टीपल जो टास्क आते रहे लाइफ में, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया था, मैंने लोगों के जाके बैंक मतलब फैक्ट्रीज में मैंने अकाउंटिंग भी करी है. बिकॉज व्हेन द कंप्यूटर स्टार्टेड लॉट्स ऑफ द कंपनीज, आज मैं कहूँ एक बड़ी कंपनी हो गई है आपकी द्वारका ज्वेलर्स, और उनके अंदर यहाँ पे था, तो उनके जो चीजें थी कि कंप्यूटर सारे शेल्फ में रख रखे थे. अकाउंटिंग नहीं आती थी कंप्यूटर वाले को, और अकाउंटेंट अलग तरह से अकाउंटिंग करता था. इन दैट सिनेरियो आपके 10-10 अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एलिजिबल टू वर्क इन कंप्यूटर्स, एंड आई एम कंप्यूटर सेवी. तो मेरे को बोला तुम कंप्यूटर पे कर दो. मैं सर अकाउंटेंट आप बैठा दो, कंप्यूटर में मैं चलाना सिखा दूंगा. द सेम स्टोरी आई हैड डन विद द सोमानी ग्रुप इन वीकेआई. तो उन लोग का भी एक टाटा का ईएक्स करके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था. तो आई जस्ट थिंक किया कि कितना ईज है, और जब लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, दैट्स वाज अ गुड थिंग. But lots of the time the fears come into the mind. One fears come कि that time the ISP starts, private ISPs आ गए थे, और एक Y2K का एक वो इवेंट आया था. yes 2000 कि इफ यू आर जस्ट अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी, एवरी टाइम देयर इज ए फियर, यार इससे कई सारी नौकरी चल जाएगी, कई सारा काम बिगड़ जाएगा, या अब हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे. राइट. कंप्यूटर्स आए थे तब लगा था जॉब चल जाएंगे, पर कंप्यूटर्स आने के बाद में लोगों को ईज हुआ. बट जब Y2K का एक ऐसा सिनेरियो आया कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी, मिसाइल्स छूट जाएगी, क्योंकि 0,0,0,0 हो जाएगा, but राइट. nothing was happened. But fear was there, क्योंकि the thing हमारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आई एम आल्सो रनिंग मीडिया विद द नेम ऑफ ITVS, मैं आगे उसको ब्रीफ करेंगे. मीडिया की प्रॉब्लम क्या है कि इन इंडियन मीडिया जो है, दे वर्क ओनली फॉर द TRPs. दे आर नॉट वर्किंग फॉर द एजुकेशनल्स, बिल्ड इंडिया, बिल्ड्स टेक्नोलॉजी. उसके लिए हमारा मीडिया वर्क नहीं कर रहा. आई एम नॉट सेइंग फॉर द 100%, बट इट शुड बी ए 80% जो जा रहा है वो उसी मोड में जा रहा है. Right. दे वर्क फॉर द TRP और फालतू की चीजों को दिखाना. तो द गार्बेज इन इज गार्बेज आउट. राइट. इट्स ए रियल ट्रूथ कि मेरे यहाँ पे 2018 से टिल डेट तक कोई न्यूज़पेपर मेरे घर पे नहीं आता. मेरे को जो पढ़ना है मैं उसी चीज को पढ़ता हूँ. मेरे यहाँ पे कोई भी न्यूज चैनल नहीं चलता जिसमें फालतू की बकवास होती है. मेरे को जो चीज चाहिए मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ. वो कई यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, कई न्यूज के छोटे छोटे क्लिप्स होंगे, मैं उसको बट हाँ डेफिनेटली आई एम टोटली अपडेटेड एंड मोर अपडेटेड देन द अदर्स. बिकॉज द थिंग इज दिस कि अर्ली मॉर्निंग वी गॉट सम गार्बेज इन आवर प्रीमिसेस, जो हमें रूल कर रहा है, हमें वो चीज डाल रहा है गार्बेज जिसको मेरे को दिन भर पकना है. yes. आज वहाँ रेप हो गया, वहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी जी के लिए रेड कारपेट बन गया, राहुल गांधी ने ये कह दिया, या इसका ये हो गया. इट्स डजंट मैटर फॉर दिस. दिस लॉट्स ऑफ द थिंग इन लाइफ जिसको हमको एंजॉय करना है. और माई लाइफ इज माई लाइफ, इट्स नॉट बी ड्रिवन बाई अदर्स. Yes, yes, exactly. मैं मेरी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ. तो माई लाइफ के अंदर कौन है? द माई फर्स्ट सर्किल इज माई फैमिली. मैं, मेरी वाइफ, मेरे फादर मदर, मेरे बच्चे. देन द सेकंड सर्किल इज माई सिस्टर्स, माई इन लॉज. हम इनके बीच में भी नहीं रह पा रहे. न्यूक्लियर भी हो रहा, हम इनको भी बीच में नहीं रह पा रहे. दैट्स द रीजन इज ओनली फॉर दिस कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी एक मेंटलिटी क्या हो गई कि वी आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स हमारे पे कम होते जा रहे हैं इन आर कम्युनिटीज. जो भी अपन कह लें, हिंदू कम्युनिटीज कह लो, कोई भी कह लो, दे आर दौड़ रहे हैं फॉर ए बेटर जॉब्स. और आज मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, तो इफ यू आर वांट टू ए बेटर जॉब और एक अच्छा अचीवमेंट चाहते हैं तो फॉलो द टेक्नोलॉजीज. लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का आपको फॉलो करना पड़ेगा.
और इन टुडेज सिनेरियो इफ आई से एआई, हाँ। जो कह रही है एआई मैं आ गई हूं, इफ यू अडॉप्ट मी आई एम विथ यू, I'm with और अगर you. आपने मेरे को अडॉप्ट नहीं किया ना तो आप बहुत पीछे रहेंगे। True, बट true. इन दैट थिंग मैं बताऊं तो उसके बाद में जो हम लोगों का हुआ तो स्टार्टेड कंप्यूटर से स्टार्ट किया था। देन 2003-4 के अंदर आई बिकेम ए आईएसपी, मैं आईएसपी भी रहा हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और सी क्लास के लाइसेंस के साथ में हमने जयपुर में ही केबल के थ्रू, केबल एंड स्विच के थ्रू हमने इंटरनेट प्रोवाइड किया था। आई वर्क फॉर 3 years, मैंने खुद की कंपनी चलाई, देन सोल्ड इट, Okay. क्योंकि उस वेंचर के अंदर ग्रोथ नजर नहीं आई। और देन फिर नेक्स्ट मेरे पास में एक चांस आया कि वन डे आई जस्ट सीन कि मैंने एक ऑर्डर मिस किया। Hmm. ऑर्डर मिस Hmm. करने का रीजन ये था कि जिस कंपनी को मैं सप्लाई कर रहा था आईबीएम के सर्वर वगैरह, मेरे टोटल 10-12 लाख रुपए की सेल मैं कर चुका था उनको इन 2007-8 की 7 के आसपास। उनको कुछ और आइटम चाहिए और Hmm. उन्होंने थर्ड पार्टी से बाई किया जो बॉम्बे की थी। मैंने Hmm. सर ये प्रोडक्ट तो मैं भी करता हूँ। बोला Hmm. मालूम नहीं था तुम ये प्रोडक्ट बड़े करते हो। Hmm. तो लेक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ माइंड या मेरी टेक्नोलॉजी की वो एक गैप था। फॉर दैट वी हैड कम इन 8 मार्च 2008 के अंदर वी केम विद द आईटी वॉइस, इससे रजिस्टर्ड आईटी वॉइस मैगजीन जो हमने आरएनए से रजिस्टर्ड कराई और स्ट्राइडर को लेकर आए। इट्स ओनली फॉर द मोटो फॉर दिस कि अब हमें इंफॉर्मेशन को पैरेलली लोगों में स्प्रेड करना है, लेटेस्ट Hmm. टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करना है। इट्स नॉट ए, इसको बिजनेस को हमने ये बनाया कि यार लोगों के पास में अवेयरनेस होगी क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नया आ रहा है, और इफ वी वर्क विद द टेक्नोलॉजी Hmm. तो वी कैन फाइट विद एनी ऑफ द वन। हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ क्या रही है क्या नहीं आ रही है, बिकॉज दैट टाइम दिस, आज की डेट में ऐसा है कि यूट्यूब और ये सारे चैनल्स आ चुके हैं। बट Hmm. इन द 2006-7-8 के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। True. इंटरनेट भी लोगों के लिए थोड़ा टास्क था। तब वो प्रिंट मीडिया में भी स्टार्टेड द थिंग। देन वी हैव डन सम, हमने आईटी के फेयर्स वगैरह, बड़े बड़े फेयर्स भी लगाए। वी केम, बहुत सारी बाहर की कंपनीज को हम इंडिया में लेकर आए, राजस्थान में लेकर आए, और उनके साथ में हमने वर्कआउट भी किया। हम आज तक 4 बड़े ट्रेड फेयर लगा चुके हैं, क्योंकि आई एम नॉट वर्किंग फॉर ए सिंगल थिंग। मेरे साथ में ये कि मैं एक सिंगल काम नहीं कर रहा था, मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन। और जो चीज आ रही थी वे आई नेवर से नो, चांस मिले गो अहेड। मतलब मजे की बात है कि एक ऐसा इंस्टेंट हुआ कि वन पर्सन केम इन माय लाइफ, तरुण एक ऑफिस सेल हो रहा है, यू वांट टू बाय दिस ऑफिस। Hmm. दैट वाज द स्टोरी ऑफ 2004 एक के आसपास होगी। मैंने कौन सा है, Hmm. बोला मोदी पेजर का, बिकॉज दैट टाइम द पेजर आते थे ना, और पेजर हाँ सर। एब्सोल्यूट और मोबाइल आ गए। Hmm. मोदी पेजर का ऑफिस सेल हो रहा है। मैंने वेज दिस, बोला एमआई रोड के ऊपर है और ये ऑफिस है। दे हैड Hmm. जस्ट गिवन, और एक प्राइस हुआ, बोला तरुण ले लो और 50% कॉस्ट में मिल रहा है। Hmm. वी डन ए डील विद इन 90 days ऑफ टाइमिंग। फिर वहां पे Okay. जब मैंने उसकी प्रॉपर्टी देखी, दैट प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ कॉल सेंटर चल रहे थे, दैट इज वीडियोकॉन का चल रहा था, अकाई का था, कैलमिनेटर, सेंसुई और किसान कॉल सेंटर। मैंने पूछा यार मैंने ये प्रॉपर्टी तो मगर मैं ले रहा हूँ तो ये कॉल सेंटर कहाँ जाएंगे। Hmm. बोला हमने उनको अल्टीमेटम दे दिया, ये डालमिया ग्रुप के हैं, ये किसी और Hmm. थर्ड प्रीमिस पे चल जाएंगे। Hmm. ना इससे सर कि मैं एक प्रीमिसेस इनके लिए दे देता हूँ, ये सारा बिजनेस मेरे को दे दीजिए। Hmm. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट प्रॉपर्टी डीलिंग, मैं वो सारा वेंचर मेरे ऑफिस में लेकर आ गया। Wow. और उस वेंचर का बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे को एक नया वेंचर मिल गया, कॉल सेंटर बिजनेस। उसको देखते हुए एक प्रॉपर्टी का बंदा मेरे से मिलता है कि तरुण, वन ऑफ द कंपनी महिंद्रा इज लुकिंग फॉर अ कॉल सेंटर इन पूना। Hmm. इट्स अमेजिंग स्टोरी इन माय लाइफ। Hmm. मैंने कहा सर पूना में कॉल सेंटर, मैं तो जयपुर चला रहा हूँ, वो भी थर्ड पार्टी का चला रहा हूँ। Hmm. बोला नहीं, वन ऑफ द गाइज देयर जो अपने को थोड़ा सा गाइड कर देगा क्या है क्या नहीं है, तो Hmm. सारे इनपुट्स हमारे पास वहाँ जाएंगे। तो वी बिकम, ठीक है, हमने सारी चीज करी और दे कॉल मी इन मुंबई। Hmm. दैट्स वाज द स्टोरी ऑफ 2009 और 8 के अंदर, 8 लेट लास्ट में था, 8 और 9 के बीच में। तो मैंने कहा ठीक है सर, हमने पूरा प्रपोजल बना के भेज दिया कि Hmm. व्हाट दे आर लुकिंग, क्योंकि दे आर कमिंग विद एससीवी लोकल हैवी कमर्शियल व्हीकल्स लेकर महिंद्रा लॉन्च कर रही थी नेविस्टा के साथ में। उनके हिसाब से मैंने उनका पूरा प्रपोजल बनाया, कॉमर्शियल्स बनाया और मैंने शेयर कर दिया। Hmm. दे कॉल अस इन मुंबई, वाशी के अंदर उन्होंने, उनका जो बीकेसी के अंदर उनका ऑफिस था, वहां पे हमें बुला के प्रेजेंटेशन देने का सारा प्रेजेंट दे दिया। और लास्ट वाली लाइन में मैंने लिख दिया कि योर कॉल सेंटर विल नॉट वर्क ऑन दिस थ्योरी, और ये आपको 6-8 महीने बंद करना पड़ सकता है। Hmm. बिकॉज वन थिंग विच आई लर्न इन मोदी जेरोक्स, अगर काम मिले तो पूरा मिले, नहीं मिले तो सामने वाले के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर देना। Hmm. आई क्रिएट द चैलेंजेस इन लाइट साइड। तो वी आर सिलेक्टेड इन द फर्स्ट 5।
जो 30 कंपनी चाहिए फर्स्ट 5 में आ गए। सेकंड राउंड के अंदर जब मैं आया तो मेरे से पूछा, तो मैंने कहा सर देखिए आपके ये ऐसे करते हैं, तो जितने भी मेरे जो थीम में जो सपने थे ना, हम्म वो सारे हम्म सपने मैंने महिंद्रा के वीपी को मैंने सेल कर दिए। ऐसा हम्म होगा तो सर एक ड्रीम कॉल सेंटर आ जाएगा, मल्टीलिंगुअल आ जाएगा। जो आदमी ऑटोमोबाइल का आ रहा है तो मैं ऑटोमोबाइल का इंजीनियर रखूंगा, उसकी ब्रेन मैपिंग करा दूंगा, उसके दिमाग के अंदर मैं पूरा का पूरा ट्रक का इंजन बैठा दूंगा और वो ऑन टेलीफोनिक ट्रक को रिपेयर करेगा। हम्म द ड्रीम आई सोल्ड इन दैट टाइम। उनको बहुत अच्छा लगा। हम तो हम्म सब सपने बेच कर आ गए बैक टू जयपुर। मालूम था हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज द लॉट्स ऑफ द मेजर कंपनीज आर देयर। विद इन स्पैन ऑफ 15 days आई गॉट अ कॉल, तरुण नेक्स्ट 7 days में तुम्हारा 10 days में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं सर आई एम फ्री। हम्म बोला वी आर सेंडिंग टिकट्स फॉर यू, यू केम डाउन टू आवर पूना ऑफिस। हम्म वी हम्म विजिट देयर। उन्होंने जो हमारा जो कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए दे गिव दिस चांस टू मी इन 2009। दैट्स अ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी हु हैज देयर टेक महिंद्रा एट दैट टाइम, और उसकी कई सारी चीजें हैं। फ्रॉम हम्म 2009 हमने उनको जो टेक्नोलॉजी, जो कॉन्सेप्ट, जो चीज बताई थी, उसका हम्म जो सीआरएम का सॉफ्टवेयर, उसके कॉलिंग का सॉफ्टवेयर, उसके मैन पावर, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट, फ्रॉम 2009 से लेके आज 2026 में बैठा हूं, दैट्स कंप्लीट सर्विसेज इज गिवन बाय मी। इट्स अमेजिंग। Amazing. Exactly. Exactly. Uh, तो With दैट the वाज द right. ईयर। नो वन कैन थिंक अबाउट दिस कि इट्स माय कॉन्फिडेंस और द रेडीनेस टू डिलीवर द थिंग्स व्हिच यू हैड कमिटेड। हम्म कमिटमेंट जो पूरा किया, दैट वाज देयर, और आज भी वो चीज चल रही है। ऑलमोस्ट 40+ का मेरा टीम स्टाफ वहां पे वर्क कर रहा है। हम्म उनको जब लगा तो यार नहीं यार, ही कैन डू दिस थिंग। ऐसे मेरी लाइफ में कई इंस्टेंट आए। आज राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो गवर्नमेंट का जो है, जहाँ सारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनरेशन के सारे प्लांट्स हैं, उसका पूरा पीआईएस और उसके मल्टीपल जो कहूंगा मिनी सीआरएम 2011 से लेके अब तक मेरा चल रहा है। डॉक्टर टोंग, मैं इसमें एक पॉइंट पे आपको पॉज करूंगा, क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी। मैं हूं ना, राइट? हम्म। तो ये जो मैं हूं ना वाला जो, मतलब ऐसे तो ऑब्वियसली पूरी मूवी बन चुकी है, बट ये जो पावरफुल ये 3 वर्ड्स है, इसकी क्या है अहमियत है एक कस्टमर के सामने? तो एक कस्टमर को अगर हम ये वर्ड बोलते हैं, उसको कैसे, उसको वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसको अपनापन लगता है, कैसे उसको जेलिंग होती है? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। देखिए देयर आर टू थिंग्स, मैं और हम, ये दो वर्ड के बीच पूरे वो चलते हैं। इफ द हम्म पर्सन इज चेंज की, या तुम मैं की बात करते हो तो यू आर कंप्लीटली इगोइस्टिक। हम्म एक आदमी ये भी सोचता है, और एक आदमी राइट। कहता नहीं सर हम है ना। हाँ द मैं हूं ना, द मीन इज दिस कि सर इट्स माई कॉन्फिडेंस फॉर यू, कि मेरा हम्म कॉन्फिडेंस इतना है कि आप अपनी जो, क्योंकि माई एक्सपर्टाइज इन माई प्रोडक्ट्स, हम्म दैट्स वाई से मैं हूं ना। एंड योर एक्सपर्टाइज इन योर प्रोडक्ट और योर सर्विसेज। इफ आई एम जस्ट करेक्ट। डीलिंग विद कंपनी, मैंने कहा सर ये अगर मैं हूं ना, तो सर फॉरगेट अबाउट द कंप्लीट योर टेंशन फॉर दिस प्रोडक्ट्स फॉर विच करेक्ट। मैं हूं। तो योर एक्सपर्टाइज यू कैन यूज इन योर एक्टिविटी, अदर एक्टिविटीज। तो आप अपना जो एक्चुअली जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो गेन करना चाहते हैं, यू कैन गेन मोर, और आई कैन गेन मोर इन माई पार्ट। तो दैट वाज द हम्म देयर कि मैं हूं ना, इट्स अ कॉन्फिडेंस टू योर कस्टमर, योर पर्सन, कि आप ये मान के चलिए कि आपने अगर उनकी हेडक ले ली, आपने उनका बर्डन ले लिया, तो इफ ही इज अ फ्री, तो देयर ग्रोथ इज 4 times, 10 times एंड 100 times। ही कैन गो फॉर राइट। दैट। तो इट्स योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस आप जिस चीज को दे रहे हो, गो डीप इनटू दैट, और उसके पिन टू पॉइंट एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर फॉर दैट। इफ योर हम्म कस्टमर्स को अगर कोई भी, बिकॉज नाउ इन डेज इफ यू सी, मेरे को सुई भी चाहिए तो मेरे घर बैठ के आ जाती है, मेरे को कार भी चाहिए तो घर बैठ आ जाती है, टेस्ट ड्राइव भी हाँ। चाहिए तो घर बैठ आ जाती है, और ऑफिस में साइन करके चल जाता है, यू नीड नॉट टू गो आउटसाइड। तो कस्टमर कन्वीनियंस। वांट्स द कंप्लीट फैसिलिटी ऑन हिज डेस्क। अगर कस्टमर बाहर चला गया, तो ही विल यू विल गेट ए कॉम्पिटिशंस, और ट्रू। मल्टीपल उसके बाद कॉम्पिटिशन आएंगे, और वो कॉम्पिटिशन को उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो योर हम्म सर्विस शुड बी एट हिज डेस्क, उसकी डेस्क पे उसको सब चीज मिल जानी चाहिए, उसकी क्वेरी हम्म सारी हो जानी चाहिए। तो योर नॉलेज, योर कॉन्फिडेंस, योर प्रोडक्ट्स उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करें। दैट काइंड ऑफ द मार्केटिंग, दैट काइंड ऑफ द नॉलेज, दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, दैट काइंड ऑफ द सर्विसेज, अगर वेब की दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर की दे रहे हैं, जो हम लोग दे रहे हैं, वो हम सारी पिन टू लास्ट महीने तक हम पूरा कहते हैं सर हम कर देंगे। आप हम्म टेंशन मतलब आप जहां एक्सपर्टाइज है सर, आप उसमें ध्यान लगाओ ना। हम्म अगर योर कस्टमर
आपके काम में ध्यान लगाएगा तो 100% आपका प्रॉफिट कम करेगा, बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम इन योर बिजनेस। तो अगर आपके बिजनेस में आपके कस्टमर ने ध्यान लगा लिया तो आपका प्रॉफिट कम होगा। ये जो पॉइंट, ये जो मैं हूं ना का जो पॉइंट मैं क्यों लेके आया, बिकॉज आजकल जो हम जो इंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं या इवन कॉर्पोरेट्स में बात करते हैं, उसमें ना एक बहुत प्रोफेशनल के नाम पे, प्रोफेशनलिज्म कॉर्पोरेट कल्चर के नाम पे क्या हो रहा है कि वो हर लोगों ने अपनी ना दायरे बांध दिए कि ये मेरे स्कोप ऑफ वर्क है, मैं उससे बियॉन्ड बात नहीं करूंगा। एंड जब ये जो बाउंड्रीज बनती है, इमिडिएटली जो, अगर मैं कस्टमर हूँ, अगर किसी ने मुझसे ये बात की तो वहां पे एक थिन लाइन आ जाती है, और वो थिन लाइन कैन गो इनटू अ वाइडर एंड थिकर मोड। तो वहीं पे रुक जाता हूँ कि नहीं, अब तेरे से आगे बात नहीं करनी। ठीक है, दिस इज द बाउंड्री, नेक्स्ट प्रपोजल में या नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। तो ये जो आपने जो मैं हूं ना जो बोला ना, दैट्स क्रिएट कि यू आर नॉट अ कस्टमर, you are more than a customer, you are a family, right? And this is, I am accountable for you, I am standing for you, and जब तक ये काम नहीं होगा मैं सामने हूँ। एंड आज के दिन में मेरी नजर में अगर एआई भी आ जाएगा, बट ये अपनापन नहीं आएगा। सो नहीं, दैट्स ट्रू। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज आई थिंक मैं भी भूल गया था कहीं पे, कमिंग फ्रॉम सेल्स। तो कभी कभार लगता है ये, अच्छा ये तो नॉर्मल स्टेटस है, ये तो एक नॉर्मल ऐसे ही होता है। एंड बट थैंक्स फॉर रिफ्रेशिंग माई मेमोरीज ऑल्सो, कि ये कॉन्फिडेंस एंड ये मेमोरीज एंड ये मैं हूं ना इज समथिंग विच इज योर जेलिंग जेलिंग इफेक्ट। एंड डोंट, फॉर एवरी वन, फॉर ऑल द अवर ऑडियंस, डोंट लूज दिस पर्टिकुलर मोमेंटम, बिकॉज ये होगा तो आप, यू आर आउट फ्रॉम द मार्केट। तो थैंक यू डॉक्टर टोंग फॉर। वन थिंग आई जस्ट ऐड टू दिस, अभी आपने बात करी कि कॉर्पोरेट कल्चर, जी। this something is confidence is the one thing. The second thing is overconfidence. हम्म। In corporate cultures we had seen lots of the time overconfidence, and the second is the limitations, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर में एक लिमिटेशंस है कि दिस ओनली दिस टास्क यू हैव टू डू, या तुमको इतना ही करना है, ये करना है। आई जस्ट से कि डू मोर फ्रॉम दैट। आप जितना ज्यादा करेंगे ना, दैट्स योर ओन लर्निंग, आपके लिए एडिशनल लर्निंग हो गई। और आपने अगर एडिशनल टास्क कर लिया तो नेक्स्ट डे आपके लिए और आपको बेनिफिट मिल गया। क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर या रूम कल्चर्स के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि इफ आई जस्ट से कि आपके ऑफिस के अंदर आपके पास में 5 जनों का स्टाफ है, वो एक आपका सपोज कर लो कि एक सेक्टर आपका जावा की टीम के लिए काम कर रहा है, एक सेक्टर जो आपका डॉटनेट के लिए काम कर रहा है, एक अलग काम कर रहा है, सेपरेट सेपरेट टीम बन चुकी। अभी टीम क्या करती है, आपस में उनका कनेक्ट हो जाता है, इफ आई से फैमिली कनेक्ट भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, करेक्ट। बट क्या उनका एक बड़ा कनेक्ट बन पाया? इट्स एक थिंक आप सोचो, एक खूटे से एक गाय को आपने बांध दिया, जो खूटा उसके ऊपर गाय के लिए 3 मीटर का है, तो शायद 3 मीटर रेडियस तक का ही वो घूम कर खा जी, पाएगी। वो इसकी बट दुनिया है। वो इसकी दुनिया है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो रूम में बैठ के काम कर रहा है, वो उसकी दुनिया है। हम्म। यू सोल्ड योर विंग्स टू योर कॉर्पोरेट्स। कट योर विंग्स इन फैक्ट फॉर योर कॉर्पोरेट। तो डोंट कट योर विंग्स, फ्लाई एज यू कैन, स्काई इज द लिमिट। और आपको जितना करना है करें, एडिशनल यू हैव टू जस्ट गो, तो यू विल गेट मोर नॉलेज, मोर थिंग्स। और नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने बिजनेस के लिए करें या आप अपने ऑफिस के लिए करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपना एक सोशल नेटवर्क अलग बनाए, वर्किंग नेटवर्क अलग बनाए, और चीजें मिलेगी। बिकॉज आई हैड सीन लॉट्स ऑफ द, मैं कई सोशल फंक्शंस वगैरह में भी जाता हूँ, तो देखता हूँ यार, एक अगर जैसे किसी एक अकाउंटेंट यहाँ पे, मैंने किसी की मैरिज में गया था किसी और कंपनी के, आई हैड सीन कि उसकी लिमिटेशंस थी, बहुत कम लोग बाग थे और उसका कोई बड़ा सर्किल नहीं मिला। जबकि व्हेन आई जस्ट सी फॉर एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वाले क्लास को अगर हम देखते हैं तो उसका एक सर्किल बड़ा होता है। व्हाई दिस? दैट्स ओनली फॉर दिस कि एक बंदा खूंटे से बंधा हुआ है, एक बंदा अपने विंग्स पे उड़ रहा है। तो विंग्स, राइट। आप ये मत सोचो कि मैं जहां जॉब कर रहा हूं दैट्स ओनली माय विंग्स इज देयर, अपार्ट फ्रॉम दिस इज मोर विंग्स आर देयर। उसको करना बहुत जरूरी है, और वही आपका जो है लाइफ का गोल बनेगा। और वही रेफरेंस आपको लाइफ में, मनी इज नॉट अ थिंग कि आपको मेरा पैसा चाहिए, पैसा आप कमा लेंगे। पैसा कमाना इन इंडिया में इट्स वेरी इजी। वर्ड में पैसा कमाना शायद टफ होगा, इंडिया में पैसा कमाना बहुत आसान है। एंड देयर इज लॉट्स ऑफ द वे, बिना पैसे से भी यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। दिस इटसेल्फ बट इज अ बिग यू हैव टू टॉपिक। से, आपको अपना ईगो को छोड़ना पड़ेगा।
द वन थिंग, हाँ, एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। व्हेन आई जस्ट गो कि आपकी इज्जत, एक वर्ड आता है हमारे यहाँ पे, इज्जत, है ना? क्या होता है ये, क्या है भाई? मैं बाजार में गया, मेरे को बाजार में जाने के अंदर किसी ने रूड वे में कह दिया, कुछ और कह दिया, तो मेरी इज्जत चली गई। नथिंग इज मुझे देयर। मुझे हर्ट हो गया या बस मेरे को हर्ट हो गया, नहीं नहीं, नथिंग इज देयर। द थिंग इज दिस कि मैं कभी जब मैं निकलता था तो मेरे को ये कहा गया था कि इज्जत क्या होती है? इज्जत होती है आपकी फैमिली में, हम्म आपके सोशल सर्किल में, या उसमें, और सबकी इज्जत का क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम्म ठीक है। व्हेन यू कम इनटू द मार्केट, आप घर के बाहर बिजनेस के लिए निकलते हैं या मार्केट के लिए निकलते हैं, तो देयर इज ए लेटर बॉक्स, जो आज की डेट में शायद ईमेल पे हो गया, लेटर बॉक्स आजकल कम हो गए। लेटर बॉक्स हाँ आउट ऑफ द गेट लगता था। बाहर करेक्ट। निकलो, अपनी इज्जत को लेटर बॉक्स में डालो, फिर सड़क पे आ जाओ, पूरा काम करो। घर पे घुसने से पहले लेटर बॉक्स खोलो, इज्जत को गले में पहनो, घर में घुसो। दैट्स अ वर्क लाइक ए कूली वाला जो सिस्टम था मेरा, वो यही था। बाहर कुछ भी करूंगा, मैं कभी हर्ट नहीं होगा, मेरी इज्जत कहीं नहीं जाएगी, मेरी इज्जत ऑटोमेटिकली मेरे घर में है या मेरे सर्किल में है, वही है, दैट्स माई। हम्म तो आपको जो मिलता है वो वहीं पे मिलेगा, रिगार्ड्स मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको पीस मिलेगा, वो सब एक बाउंड्री के अंदर है। आउट ऑफ द बाउंड्री आप कुछ भी करें, डू इन लिमिटेशंस, लीगली, बढ़िया तरीके से करें, बहुत कुछ चीजें। Uh, and if I just want to put one more word in the concept of prestige is your positioning. जब या आप बाहर निकलते हैं तो लोग आपको कैसे देखते हैं? मतलब आर दे सीइंग यू एज अ पर्सन कि ये इंटीग्रल, ऑनेस्टी, कमिटेड, ये पोजीशनिंग है जिसको जिसको अर्न करने में सालों निकल जाते हैं, या उनको लगता है कि ये सिर्फ एक जो आए हैं वो सिर्फ ट्रांजेक्शनल के लिए आए हैं? तो ये जो फैक्टर है, ये जो पॉइंट है, ये आपको ओवर द क्राउड एंड आउट ऑफ द क्राउड पोजीशन कर सकते हैं। बट दिस इज समथिंग विच एवरी इंटरप्रेन्योर has to has to follow these principles religiously. So thank for bringing that typical word which most of the people shy to talk about. Thank for bringing that particular part of ego and is that at there. Uh, I have a one important thought. You know, uh, 30 years back when you started your career, जैसे आपने मोदी Xerox की या बात, and your job was to knock the doors, right? डोर टू डोर पे जाना। या डोर टू डोर। क्या फीलिंग आई थी जब आपने फर्स्ट टाइम किसी का डोर नॉक किया था? द फर्स्ट थिंग इज दिस कि जब मैंने जो पहला नॉक किया था, मैंने किया, मैं आई वाज इन स्कूल, और मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा अभी। मैं हम्म मेरे उन डायरेक्टर के पास में गया, बिकॉज मेरे डायरेक्टर मेरे को जानते थे। मैंने उनको कार्ड दिया, सर, माई सेल्फ तरुण टाक, और आई एम योर एक्स स्टूडेंट, और आई ज्वाइन दिस मोदी जेरोक्स, और सर आई नो कि आपके यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आती है, तो आई विश कि सर आप अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करें। हम्म कैन यू इमेजिन, उन्होंने ये कार्ड लेके यों थ्रो किया, कार्ड गिर गया टेबल से, मेरा नाम था, मैंने नाम को उठाया, जेब में डाला, बोला, वो बोलते हैं, आई नो द कंप्लीट ब्रांच मैनेजर एंड अदर्स, जरूरत होगी तो मैं उनको बुला लूंगा। हम्म उस दिन जो हर्ट हुआ, वो मैंने जेब में कार्ड डाला, बिकॉज माई नेम, मैं नाम जमीन मेरा जमीन छोड़ सकता था, कार्ड डाला, थैंक यू सर कह के बाहर आया, और बाहर मेरी आंखों में इतने आंसू थे जितना मैं नहीं सोच पाया था कि यार ये क्या था। तो मेरे को हम्म जिससे होप थी, वहां सबसे पहला मेरे को फील हुआ कि नहीं। अब क्या है कि जब आप एक नॉन आदमी के सामने, आपको लगता है कि यार इस नॉन आदमी ने मेरे साथ में ऐसा किया, हम्म तो आपको लगता है यार मेरी इज्जत गई। हम्म दैट डे व्हाट आई डिड, अननोन के पास जाए, वहां आप हम्म हर्ट भी होंगे तो आपको फील नहीं होगा, नोन में फील होता है। feel होता है। आप कभी, जैसे मैं अब्रॉड जाता हूँ या वहां जाता हूँ, मैं वहां पे कुछ भी पहन लूंगा, बरमूडा पहन लूंगा, कुछ भी पहन लूंगा, मेरे को कोई फील नहीं होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं है। पर कैन यू डू दिस थिंग इन योर ओन सिटी? हम्म, नहीं कर पाओगे। क्यों? नहीं। एक इज्जत का फियर, एक सोशल सर्किल का फियर हमारे पीछे चल रहा है। तो वो और हम फियर मेरा वहां से निकला, हम्म बिकॉज आई जस्ट से कि मेरे को मोदी वालों ने जो मेरे को जो ट्रेन किया, या मैं कहूंगा उस आदमी ने, इट्स हैट्स ऑफ दैट गाय, कि मैंने कहा सर मेरे साथ में ऐसा हो गया। बोला, क्यों गया था वहां पे? हाँ अपने ठुकराते हैं, पराये अपनाते हैं। तो वाह। पहले दिमाग में डालोगे, अपने ठुकराते हैं ये, बिकॉज इन इंडिया में जो हमारे को लास्ट 30 40 50 ईयर्स में जो हुआ है ना, कि हमें जो कहूंगा कि जो एक्चुअल एजुकेशन है वो हमें नहीं दी गई। कैन यू इमेजिन राइट। कि मैं महाभारत का एक एग्जांपल देता हूँ। अर्जुन वॉज टोटली फियर्ड
डरा हुआ था कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। सामने भीष्म पितामह, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े वो, बाकी सारे मेरे रिश्तेदार, बाकी सब ये, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे क्या करूंगा। एवरीवन नोज कि कुछ भी अर्जुन ने हाथ टेक दिए थे। व्हाट्स द टाइम दैट हैपन, श्री कृष्ण केम और उसने उनको गीता का 18 अध्याय सुनाए। उस गीता के 18 अध्याय के अंदर अर्जुन का फियर निकला और अर्जुन एक युद्ध करके बाहर निकला। उस युद्ध के अंदर उसने अपना बेटा भी खोया, अभिमन्यु खोया, तब भी उसको कोई फियर उस तरह का नहीं लगा। गीता इज द वन ऑफ द मैनेजमेंट बुक, इफ आई से। और फ्रॉम योर चैनल आई कैन जस्ट अपील, मान लो गवर्नमेंट को गीता स्कूल के कोर्स में कंपलसरी कर देनी चाहिए। बच्चों का फियर निकल जाएगा, वो बहुत चैलेंजिंग वे में अपनी लाइफ जिएंगे और वो अचीव करेंगे जो नहीं सोच सकते। यस, एंड जो इंडियन कल्चर है उसमें तो ये बेस है, राइट? गीता हाँ, एक्चुअल बेस्ड है। इज अ फ्रेमवर्क, इज अ दिस फ्रेमवर्क। या कंप्लीट फ्रेमवर्क। ये देख लो, या फिर आप अपना चाणक्य नीति देखो, ये दोनों नीति ऐसी थी जिससे के अंदर, बिकॉज व्हाट वाज इंडिया, हम सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया है, बिकॉज वी नो हाउ टू डू द बिजनेस, वी नो हाउ टू अर्न द मनी एंड वी नो हाउ टू लिव आवर लाइफ। चद्दर के बाहर पाँव नहीं निकालते थे, ये हमने सबने सुना था ना। राइट। पर व्हेन द वेस्टर्न कल्चर केम, 90% की चद्दर के बाहर पाँव निकल चुके हैं। 90% लोग बाग आज ईएमआई पे लाइफ जी रहे हैं। भाई, इफ आई से फॉर द ईएमआई केस, एज ए गुजराती, मेरे जो एक और है, मेरे जो मैं फादर की बात करूं, मेरे फादर मेरे को बहुत चीज कहते हैं, टुडे ही इज नॉट इन लाइफ, पर बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही थी कि बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज को ईएमआई पे लेना है तो टेक इन योर माइंड 1000 डेज के अंदर वो ईएमआई जीरो हो जानी चाहिए। मीन्स 3 इयर्स में तुम अगर इस ईएमआई को जीरो कर सकते हो ना, तो टेक द थिंग्स ऑन ईएमआई। अदरवाइज आप अपने लाइफ टाइम और कई बड़े जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है उसको स्पॉइल कर देंगे। आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप कमा नहीं पाएंगे। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अर्निंग फॉर द बैंकर्स, यू आर अर्निंग फॉर द अदर्स। तुम तुम्हारे लिए नहीं कमा रहे हैं, तुम अपना गोल्डन टाइम स्पॉइल कर रहे हो। इफ यू आर इनटू द बिजनेस, तो टेक ए लोन, बट दैट लोन शुड बी रीपेड इन 1000 डेज। हाँ, सेकंड लोन आप लो, थर्ड लोन लो, बट रीपे 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट कर सकोगे तो यू विल बी एंजॉय इन योर लाइफ। और आज क्या होता है, बैंक इज गिविंग सर 25 साल का, सर मैं आपको हाउस लोन दे रहा हूं। 25 साल तक आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। और जब आज आप 30 इयर्स के अंदर 25 इयर्स का लोन रहे, 55 इयर्स के अंदर आपकी क्या होगा, यू आर नॉट एंजॉइंग। You always have, sword on the neck. तो दैट्स द थिंग दिस, कि आपको क्या करना है कि आप अपनी चादर को इतनी प्लान कर लो ना। आज यू आर डूइंग ए जॉब, कल आपकी वजह से जॉब नहीं होगी तो हाउ कैन यू जस्ट रीपे योर ईएमआई? Very tricky situation. Very इट्स tricky इट्स बहुत situation. ट्रिकी सिचुएशन, बिकॉज आफ्टर देन व्हाट द थिंग इज दिस, मैं लोगों को इस सलाह कहता हूँ कि भैया डू वन थिंग, कि आप सो तो भी आपका अर्निंग का मीटर चलना चाहिए। आप सो तो भी अर्निंग का मीटर चलना चाहिए, एनी ऑफ द वे, आइदर इट्स ए रेंटल बिजनेस में आ जाए, या आपका कोई म्यूचुअल आपने लगा रखा है, या कुछ भी सिप कर रखी है, या कुछ भी करो, या थर्ड पार्टी से कोई भी काम कर रहे हैं, 24/7 365 डेज आपका अर्निंग का मीटर चालू करो। ये सोने की चिड़िया बनने की उस समय की हमारी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। Right. और आज हम Right. लोग के पास तो इतना बड़ा फायदा है कि वी आर ए टेक्नोलॉजी गाय। हम अमेरिका से काम कर रहे हैं, हम यूएस से काम कर रहे हैं, हम कनाडा से काम कर रहे हैं, हमारे डे नाइट का डिफरेंस है। हम यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे दूसरी टीम काम करती है, वहाँ पे वो काम करती है, यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो करना चाहिए लोगों को, जो है ना। अब आई से कि इंस्टेड ऑफ राइडिंग बिहाइंड द जॉब्स, बेटर टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप्स और डू एनी ऑफ द वर्क। भैया पंचर भी निकालना है ना, तो इट्स ए बिग, मैं कहूंगा आज अपॉर्चुनिटीज है। कोई स्टार्टअप बना ले रहे, पंचर निकालने का मैं स्टार्टअप बना रहा हूं, आई कैन से 5,000 करोड़ रुपीज का वो आदमी विद इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स बन जाएगा। यू कैन अमेजिंग। मैं ऐसे ऐसे पंचर्स वालों को मैंने देखा, दे आर टाई अप विद द इंडियन ऑयल्स और 70,000 रुपीज रेंटल दे रहे हैं पंचर वाला। Yeah. It's
तो इट्स अमेजिंग। इट्स अमेजिंग एंड ऑल्सो आइडियाज की कमी नहीं है। नहीं यू है। नो ये जो आपने एग्जांपल दिया, ये वो एग्जांपल है जो लोगों के लिए पेन है। लाइक इफ आई ड्राइव एंड आई नो द या हाउ द सिचुएशन यू नो इज इन एनी रोड विद इन द कंट्री, वी नो अबाउट इट, राइट? और ये तो होना ही है अनएक्सपेक्टेड। बट द पर्सन हु इज एक्चुअली हीलिंग अस, जो हमें उस टाइम पे वो जो हमारे फ्लैट टायर्स को ठीक करके वॉट एवर दे पुट इट अक्रॉस, तो दे आर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एंड ये प्रॉब्लम का जो साइज है, यही मल्टी मिलियन है, राइट? बिकॉज ये तो हर एक के पास कार है। वही आपका एग्जाम्पल। दैट्स से ना कि मैं हूं ना, तो इफ हाँ। योर एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए मैं हूं ना कि 50 आदमी क्रिएट हो जाएंगे ना। योर लाइफ इज टू स्मूथ। हर हम्म। आदमी की जो प्रॉब्लम्स है उसको क्रिएट कर, को उसको जनरेट करके उसके ऊपर स्टडी बना के और उसके पीछे एक मैं हूं ना को खड़ा कर दो ना, तो लॉट्स ऑफ द वेंचर शुड बी देयर। और And द ये- थिंग, द सेम थिंग इज डन बाय अर्बन क्लैप। हाँ, न्यू नेक्स्ट अर्बन ऊपर क्लैप जैसे वही मैं है। हूं ना, आज अर्बन क्लैप को मैं कहूंगा तो मैं हूं ना। मैं हूं योर ना। 90% प्रॉब्लम आदमी को सोचता है यार मैं हूं ना, अर्बन क्लैप से मंगा लो, हाँ। और 10% आ जाएगा। lovely. So one important message to our audience, you can see how the dots are getting connected. So thus, या with we started from the mindset, the confidence, the equal chair concept, and then वो मैं हूं ना, अपनापन, the personal grudges जो हम लेके चलते हैं, that ego problem, the biggest problem, and the important, which I love the idea, that 3 meter of rope and the bull is running around it. तो वही दुनिया है। So don't cut your wings, right? But in fact, look there where you can expand. And there are so many interesting topics which is coming, because now this conversation is going into that movement where you are actually learning from the veteran and the person who built from the scratch, I must say, and now he is really into the business, multiple business of $1 million. So stay tuned. बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। तो डॉक्टर, थैंक आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू, राइट? मैं या इसलिए इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ बिकॉज उस स्टेज पे वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट आज 30 years, देन दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड आप उसको वो अपने जनरेशन को और अपने कलीग्स को भी बताते होंगे। एक जॉब से एंटरप्रेन्योर का जो कन्वर्जन था, माइंडसेट कन्वर्जन, वो कैसे आया? इट वाज अ अब्रप्ट डिसीजन, इट वाज अ थॉटफुल बेट फिर जो व्हिच यू हैव टेकन 30 years बैक? सर, जॉब से आने का इफ आई से तो एज ए ब्लड माई गुजराती दिमाग, तो मेरे ग्रैंडफादर वाज वी आर द रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेरे ग्रैंडफादर्स को राजस्थान में बुलाया था। और वी स्टार्टेड, उन्होंने 1915 के अंदर बांदी हुई वाज द स्टेट, वहाँ से राजस्थान में जितनी भी रेलवे का जो नेटवर्क हुआ है, इट्स डन बाय आर कम्युनिटीज। तो हम्म। उसके बाद में जो फादर की जनरेशन थी, पापा लोग 7 भाई थे, उनके बाद में थोड़ा सा फैमिली में कुछ हो गया, दादाजी एक्सीडेंट एक्सपायर हो गए, बिजनेस पूरा स्पॉइल हो गया। पर ब्लड में कहीं ना कहीं बिजनेस दिमाग में था। तो व्हाट हैपन कि जब जॉब किया था, तो बिकॉज माय डैड वाज इन अ जॉब, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जॉब में निकाली इन जयपुर मेटल स्टील के अंदर। और उसके बाद उनका भी था कि यार ये जॉब इज अ सेफ और यू कैन स्टार्ट विद अ जॉब। जॉब करा, हम्म। जॉब करा, जॉब में क्या हुआ कि इफ आई सी कि मैं जो करना चाहता था और जो मेरे अचीवमेंट्स थे वो एनक्लोज नहीं हो पा रहे थे। लोग, मेरे जो बॉस थे ये थे, वो क्या कहते, मेरे अचीवमेंट्स को खुद के गिना के वो कर लेते थे। तो हम्म। फील हुआ यार नहीं, ये तो अपने लिए नहीं है। व्हाट्स हैपन हम्म। दैट टाइम, एक अपॉर्चुनिटीज ये आई कि मैं जो कमा रहा हूँ, जितना मैं कमा रहा हूँ, हम्म। उतना पैसा मैं क्या ऐसे छोटा मोटा काम करके कर सकता हूँ। हम्म। तो मैं लास्ट दैट टाइम द जॉब वाज इन मोदी जोरॉक्स में जॉब थी। मोदी हम्म। जोरॉक्स की जॉब के अंदर मेरे को जो मिल रहा था, समवेयर अराउंड 4,000 के आसपास का अमाउंट हो रहा होगा। बाद में मेरे को लगा यार ये तो काम से तो 4,000 हम कहीं से और भी निकाल सकते हैं। हम्म। तो मैंने कुछ फोटो कॉपीज का एक बिजनेस लिया और एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। उसके अंदर हम्म। मेरे को 16,000 रुपये की अर्निंग हुई विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ। क्योंकि हम्म। मैंने उसमें वोटर आईडी का कोई कार्ड काम आया था, तो मैं फोटो कॉपी करने का, यार हमें ये काम करवाना है। मैंने कहा वाई यू बाइंग दिस फोटो कॉपी मशीन विच आई एम, मैं सेल करता था, मैंने तुम्हारा हम्म। काम मैं करके देता हूँ। हम्म। आई टाई अप विद ए वेंडर और ये काम करके दिया। आई अर्न $16,000। चार चार महीने की तनख्वाह आ गई। 3 महीने में रिस्क ले सकता हूँ। आई हैड हम्म। टेकन द रिस्क फॉर दैट 4 मंथ सैलरी। अगर मेरे पास में 6 महीने का रिस्क लेने का पैसा है, तो मैंने कहा कि इसको काम किया सकता है। देन आई स्टार्टेड, और इन द सेकंड मंथ आई सोल्ड वन डेस्कटॉप विथ ए मार्जिन ऑफ $16,000 अगेन। और दैट वाज द कॉन्फिडेंस कि पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए फिर जो भी काम करना पड़ा,
धीरे 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 कनेक्ट बनाना, रिलेशंस बनाना। और आई डन वन मोर थिंग इज दिस, मेक योर डिसीजन आपको जब भी लेना है या आपके जो रिलेशंस बनाने हैं, मेक योर रिलेशंस विथ ओनली डिसीजन मेकर्स, नॉट टॉम डिक हैरी। if you make your relation with the decision makers, your deal will be fast, safe and secure. तो मेरे सारे इंडस्ट्रीज से और बिजनेस हाउसेस से मेरे रिलेशंस बने फ्रॉम 1997 से 2000 तक। मेरे ऐसे रिलेशंस बन चुके थे कि जो करोड़पति जो बिजनेस हाउसेस थे उनका मैं सप्लायर था और मैं सिर्फ ओनर से डील कर रहा था। तो द थिंग इज दिस कि वो जो डिसीजन मेकर से अगर आपकी डील बनती है, आपके रिलेशंस बनते हैं, तो लाइफ में कभी आपको बिहाइंड पीछे जाके नहीं देखना, पीछे नहीं मुड़ना। जो भी आपने एक पॉइंट रखा था कि कंपटीटर्स के लिए इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर दो कि वो वहां तक वो उसी को जूझने में लग जाएंगे, उसी को सॉल्व करने में लग जाएंगे, एंड योर पाथ इज सो सेफ। एंड या ये जो पॉइंट आपने बोला डिसीजन मेकर्स, टॉक विद द डिसीजन मेकर्स। ऑब्वियसली थोड़ा नीचे आपको उनको, नीचे वालों को भी जब तक वो अप्रूवल नहीं मिलेंगे वो ठीक है, बट स्माइल फॉर द लोअर साइड में आप स्माइल रखें, उनसे रिलेशन की बात करें, बट व्हेन यू हैव द रिलेशन विद डिसीजन मेकर, यस दैट्स द डील आपके लिए बहुत ईज होगी। अदरवाइज सर डाकिए की तरह सर कल आना परसों आना, नो यूज ऑफ दैट। Correct, correct, exactly. That's the important, and that's the reason we are now getting into that era जहाँ पे startup बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन या not and they are still struggling with the basic idea or basic challenge of selling. वो AI से सब कुछ तो बना चुके हैं, लेकिन अपने आप स्टिल वो 100 रुपीज नहीं कमा पा रहे। दिस इज द हार्ड रियलिटी राइट नाउ, राइट? कमाना दीपक देखो, इट्स नॉट ए टफ टास्क। द थिंग इज दिस, देयर इज अ 5 M थ्योरीज देयर, मनी, मार्केटिंग, मशीनरी, मटेरियल एंड मैन पावर। व्हाट्स हैपन, मनी आदमी लेकर आ जाएगा तो उसको मार्केटिंग नहीं हो पाएगी या उसको मैन पावर नहीं मिलेगी। आज मार्केट में देयर इज अ 2 बिग चैलेंजेस, मार्केटिंग, मैन पावर, मार्केटिंग, मैन पावर, मार्केटिंग, मैन पावर। कोई वर्क नहीं कर रहा इसके ऊपर। कैन यू इमेजिन इन द ईयर ऑफ द 2007 एक वो कॉन्सेप्ट आया था कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कम्स इनटू द इंडिया, और हर बैंकिंग और प्राइवेट कंपनीज ने इंश्योरेंस करना चालू किया था। दैट टाइम तुमने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग बाग इंश्योरेंस एजेंट बन गए थे, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स कम टू द मार्केट। राइट, मार्केटिंग इन द फीमेल्स आई थी, एंड दिस इंडस्ट्री इज ग्रोन लाइक, मतलब ब्लास्ट किया इस इंडस्ट्रीज ने, इतना ग्रो किया। तो इफ यू जस्ट गो फॉर दिस की मार्केटिंग एंड मैन पावर, अगर आपका इन दो पे कंट्रोल है तो एवरीथिंग इज बिहाइंड ऑफ योर स्टार्टअप्स, सब आप कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। योर मैन पावर शुड बी योर्स, fully learned, knowledgeful, hard worker, and your marketing strategies. मुझे एक आपसे एक एडवाइस चाहिए और एक आपकी इंसाइट चाहिए। जितने भी इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, राइट, या जितने भी बिजनेस अभी चल रहे हैं, सबको ये बात पता है, बट व्हाई दे आर नॉट पुटिंग फोकस ऑन दीज टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट? क्योंकि मार्केट, आई गिव यू वन एग्जांपल। आज मैं किसी मैन पावर से बोलता हूँ या किसी को हम रिटेन करना चाहते हैं, तो पहला थॉट किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस ओनर का ये आता है, अरे ये तो मिल जाता है, ये 10,000 में, 15,000 में। मतलब दे डोंट वैल्यू द पर्सन ऑन हिज कैपेबिलिटी, दे वैल्यू ओनली विद ओके विद द प्राइस टैग, ये मिल जाता है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, एंड वी हैव सीन कि कोई व्हाट्सएप पे ही रिजाइन मार देता है या व्हाट्सएप पे ही टर्मिनेट किया जाता है। अभी वेरी रिसेंट न्यूज, राइट? Yeah, सेकंड इन मार्केटिंग, यू नो वही 3 मीटर वाली जो रोप का एग्जांपल है, तो वही जो मेरे नोन है या जो भी थोड़े मेरे अननोन हो गए, या जो आजकल एक प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं, रेफरेंस, तो कोई रेफरेंस yeah, दीजिए, राइट? इसके बियॉन्ड लोग बात ही नहीं करना चाहते। मतलब क्या हमें हमारा नेबर जानता है कि हम ये काम कर रहे हैं? एंड इफ द आंसर इज नो, देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, you are not promoting yourself. So what is your take कि how a person should come out with these challenges? उनको अपने mindset कैसे change करें? Because you have seen this, the trends, you are already experiencing तो this. the major issue is this कि what the person is doing, वो क्या देखता है कि मेरा क्लोन मार्केट में मिल जाए। एक बिजनेस हाउसेस क्या सोचता है, यार जितना मैं काम कर रहा हूँ मेरे इक्विवेलेंट या मेरे को एक क्लोन मिल जाए, मेरे को ऐसी टीम मिल जाए जैसे मैं काम कर रहा हूँ। इफ द ओनर इज वर्किंग फॉर 18 and 20 hours, your team will not be work for 18 or
hours. For that you need at least 3 manpowers to replace your working. तो प्रॉब्लम क्या चैलेंज आता है कि मैं जब इतना कर सकता हूं तो मेरी टीम इतना करेगी नहीं. इफ यू वर्क, आप एक काम 10 घंटे में कर पा रहे हैं या 8 घंटे में कर पा रहे हैं तो 1/3 ऑफ टाइम में आपकी एक टीम काम करेंगी एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड इनटू दैट. तो आपकी मैन पावर आपके साथ में कंटिन्यूस चलेगी. द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग दिस की कि आपकी जो मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर ही इज हैप्पी इन ए, सपोज कि 100 रुपीज के अंदर वो हैप्पी हो जाता है, गिव इट 110 और 120 रुपीज एक्सेस उसको थोड़ा सा पे कर दें, जिससे क्या है कि उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मार्केट उसको उतना रिपे नहीं करेगा जितनी उसकी टैलेंट है. आप उसको थोड़ा ज्यादा पे कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या हुआ कि आपको एडिशनल मिल रहा है और ही वो अपनी इसके पीछे आपको लॉयल्टी दे रहा है. कैन यू इमेजिन कि अंबानी का ड्राइवर या टाटा का ड्राइवर या टाटा का जो किचन में हाउस मेकर्स जो है, व्हाट दे आर पेइंग फॉर दैट. मतलब एज पर द न्यूज, एक मतलब 5 स्टार के शेफ को भी नहीं मिलता होगा. हाँ राइट, एग्जैक्टली. ठीक है ना. और उसके अलावा भी उनको जो फैसिलिटीज मिलती है वो फैसिलिटीज भी नहीं मिलती होगी. दिस ओनली फॉर दिस कि उनको उसकी लॉयल्टी चाहिए. और आज हम हमारी टीम के अंदर लॉयल्टी क्रिएट नहीं कर पा रहे. सर आप नहीं दोगे तो सर मेरे को दूसरी जॉब मिल रही है, आई विल गो. एंड वाइस वर्सा, तुम नहीं करोगे तो मैं दूसरा ले लूंगा, वो इसमें में हो जाता है. तो you if because if you are an entrepreneur या if you are a businessman, you always need a good team. Or it's a good team, or it's a long term team. Yes. So for long term you have to pay more. long term investment करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म के लिए आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो डोंट थिंक अबाउट. आज की ये चैलेंज इसीलिए है कि यार इतने में मिल रहा है ना, जो आपने भी कहा, इतने में नहीं, इससे ज्यादा में मेरे को हायर करना है. तो ही विल शो ए लॉयल्टी और आपके लिए एक अच्छा आपको रिजल्ट भी पे करेगा. एवरी काइंड ऑफ द मैन पावर इज देयर. और सेकंड थिंग, मेक ए रिलेशन विद देयर फैमिलीज आल्सो. उनके बारे में पूछे, उनके फादर मदर के बारे में पूछे, उनकी वाइफ के बारे में, उनके बच्चे के बारे में पूछे, और उनको कहीं ना कुछ गुडीज या कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट करते रहे हर 3 मंथ 6 मंथ के अंदर. तो उनको ये फील होगा नहीं यार ये जो ऑफिस है, क्योंकि मेरा ऑफिस मेरे लिए, मैं कहूंगा तो भैया मेरे को भी मेरा घर ही ऑफिस चला के देता है. मेरी भी दाल रोटी इसी चलती है, मेरी टीम की भी दाल रोटी इसी चलती है. मैं तो सीधा कहता हूँ भैया तुम्हारे कारण मेरी दाल रोटी चल रही है. तुम काम नहीं करोगे तो भैया मैं भूखा मरूंगा. तुम भी मरोगे, मैं ही मरूंगा. मेरे ऑफिस में कोई लॉक एंड की नहीं है. इट्स ए वन ऑफ द बेस्ट थिंग. मेरा ऑफिस कौन सुबह खोलेगा और कौन पूजा करेगा ये भी फिक्स नहीं है. जो भी पहला स्टाफ आएगा ही इज द सेम. वो भी दिया जला सकता है, मैं भी दिया जला सकता हूँ, वो भी ताला खोल सकता है, वो भी जो लास्ट जाएगा ताला बंद कर जाएगा. दैट्स देयर कि उनके ऊपर खुद के ऊपर है या नहीं यार, ये हमारा काम है. So that's ये strength is there. that shift, that shift Yeah. is something which is missing nowadays. वही corporate culture, वो जो bureaucracies, hierarchies, approvals, all these has been actually diluted this human behavior, and this is the It's just biggest. there. It's also be there और ये होना भी चाहिए. तो कॉर्पोरेट कल्चर को कॉर्पोरेट हिसाब से काम करना है, because there's a n number of the process. But if I say for the startups or for the small ventures या MSMEs, इंडिया में MSMEs आज भी रिलेशंस पे और अपने कल्चर पे काम कर रहे हैं, अपनापन पे काम कर रहे हैं. Yes. आज भी हमारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, MSMEs जो भी देखोगे ना, वहाँ आज भी रिलेशन बेस्ड ही काम है. दैट्स व्हाई वी आर ग्रोइंग. इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री. वो वही रीजन है कि हम अपने आप पे काम कर रहे हैं. इफ यू फॉलो ऑल द कॉर्पोरेट कल्चर, डेफिनेटली मैं कहूंगा भी इंडिया ठप हो जाएगा, क्योंकि हम ही इतने डिसिप्लिन नहीं है जो डिसिप्लिन कॉर्पोरेट कल्चर में होता है. Exactly. तो जो लिबर्टी हमने जो दे रखी है, ले रखी है, वो आपको रिजल्ट दी. आप किसी भी स्टाफ को 2 घंटे एडिशनल रुक के काम कर लो, वो करके चला जाएगा. बट इन कॉर्पोरेट कल्चर 5 डे वीक, सर मेरा हो गया शट डाउन, मंडे मिलेंगे. ये प्रॉब्लम यही है कि वाई 5 डे वीक यार. 7 डे आप खाना खाते हो, 7 डे आप उठते हो, बैठते हो, सब कुछ करो ना. डोंट डू फॉर योर ऑफिस बट डू योर सेल्फ. बाकी 2 दिन आप अपनी लर्निंग कर लो, कुछ सीख लो, और वो आपको आगे काम आएगा. और कंट्रीब्यूट करो बैक टू द वर्क. Then contribute to, if you contribute to your office, otherwise if you contribute to your society, your nation, do something. Next 2 days वर्क तो करो. नहीं 2 दिन छुट्टी है, मैं तो सुबह में लेट उठूंगा,
12 बजे उठूंगा, देन फिर मैं वो जाऊंगा, इट्स नॉट अ लाइफ। पर वो फिर वो रूटीन वाला, एंड देन वो यू आर इन द रूम बट स्टिल यू आर नॉट बस कनेक्टेड, एंड तो वो उनकी मैं कहूँगा इट्स बंद कमरे के अंदर वो है कि छोटी सी वो ये 3 मीटर वाली कहानी है, वो 30 की लाइफ है, देन वो एडिशनल राइट। ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एंड वो 3 मीटर वाली रोप कभी भी टूट सकती है, either they बस terminate him or he or she can leave it, तो या वही ट्रांजेक्शनल है, it's not a that thing. uh, I love this concept of MSME because इसका पॉइंट किसी ने भी आज तक डिस्कस नहीं किया इस पॉडकास्ट में, and thanks for या bringing this thing because MSME is one area, one community जो कि एक डिफरेंट लेवल पे काम करती है. They don't work by the laws, they work for the objective and the what you say the deliverables, right? And जितनी कमिटमेंट है, जितनी डेडिकेशन से वो लोग है, with a lot of flexibility, that's what which is making the India a great nation, right? And I think जो सोने की चिड़िया का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, and they are the biggest contributor, although they are small but they are in huge numbers. So thanks for bringing that particular point. And yeah, to be honest with you, मुझे इंडिया को एक नए नजरिया से देखने का मौका मिल रहा है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आवर ग्लोबल ऑडियंस जो 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 हमेशा पूछते हैं, राइट, वी ऑल आर इंटरनेशनली कनेक्टेड, सो वो पूछते हैं हाउ द इंडिया, राइट, तो हम एक समर विंटर की बातें करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, आई विल टेल देम, look at this podcast, understand what exactly the India and how the business runs in India. So thank you for bringing this thing. Uh, I want to know, especially from you have touched base on this starting up of IT voice media, right? या But explain to that, how this spark comes and what is the differentiator of IT voice media with if you compare with other media houses. So IT was is completely different because we it's a not a profitable kind of the media we had started. We started as a informative or educational kind of the media. कि Hmm. we want to just share कि because the technology बहुत fast move हो रही थी. No Hmm. one thinks कि when we are in 90s तो हमें ये नहीं मालूम था कि मोबाइल जैसी कोई चीज आएगी. बट वी Hmm. सीन इन स्टार्टेक करके एक टीवी एपिसोड आता था संडे को, तो उसके अंदर हमने मोबाइल भी देखा था, उसके अंदर हमने ऐसे उड़न तश्तरी भी देखी थी, पर वो सब सपना था. बट रियलिटी में Hmm. आ गया, मोबाइल भी आ गया. तब मोबाइल आया था, एक छोटा सा मोबाइल आ गया, कीपैड वाला मोबाइल होता था, बहुत भारी होता था, उठा के मारो तो लगता था और लगा के शो करके चलते थे. Huh. फिर बाद में आया यार मोबाइल के अंदर भी सारी चीज आ गई, देन स्क्रीन आ गई, फिर एसएमएस आ गया, देन फिर उसके अंदर एंड्रॉयड आ गया और सारी चीज आ गई. अब नाउ मोबाइल इज योर लाइफ Hmm. इन हैंड, आपकी टेक्नोलॉजी पूरी हाथ में आ गई. बट एक जो टेक्नोलॉजी का जो इतना फास्ट चेंजेस चल रहा था, उस फास्ट चेंजेस को अडॉप्ट करना और लोगों को अपडेट करना और वो नॉलेज Hmm. आना, वो कहीं से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी. बिकॉज ऑल द कंपनीज टच विद अस कि भैया मैं ये कंपनी के प्रिंटर्स आ रहे हैं, इस कंपनी के लैपटॉप्स आ रहे हैं, ये सीरीज ये आ रही है, ये सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ये सर्वर्स आ रहे हैं. वो सारी चीज अब कस्टमर्स को अवेयर करना और आपको फास्ट क्योंकि ग्रोथ करनी है. बिकॉज व्हाट इज द थिंग, टाइम इज द मनी, वी ऑल नो. Hmm. Hmm. बट हाउ यू आर जस्ट यूजिंग योर टाइम, यूजिंग द टेक्नोलॉजी एट द राइट टाइम टू सेव द योर टाइम. तो Hmm. वो उस चीज के लिए वी केम विद द आईटी वॉइस कि बस सर ये टेक्नोलॉजी आ गई, यू कैन अडॉप्ट, यू कैन अडॉप्ट, डोंट बाय फ्रॉम मी, देयर इज अ लॉट्स ऑफ द कंपनी, यू कैन बाय फ्रॉम एनी अदर्स. आप कहीं Hmm. से बाय करें, बिकॉज इसमें सबके मेरे एडवर्टाइजमेंट्स भी कंपनी मेरे को देती थी, उससे हमारी रेवेन्यू इसकी निकलती थी. और बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में आर्टिकल्स और ये सारी चीज अपडेट कर रहे थे. Right. अच्छा लगा, फिर कंपनी ने कहा नहीं यार इसको शोकेसिंग करना है, तो वी केम विद द एक्सपो आ गए, लाइव देखो, फील करो. देन फिर कंपनीज को हमने बुला बुला के यहाँ पे सेमिनार कराए, कॉन्फ्रेंस कराए, मीट्स कराई, टेक्नोलॉजी को अपडेट करा. तो आईटी की वॉइस बनाई हमने. Hmm. इट्स ए Hmm. टेक्नोलॉजी वॉइस है, आप इसको देखें करें. तो एक सपना था और सपना आज की डेट में धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता चला गया, बहुत फास्ट बढ़ा. और इट्स वॉज अमेजिंग फॉर अस आल्सो. एआई एंकर हमने 2023 में मेरे पॉडकास्ट पे आ गई थी. Oh, okay. तो Right. एआई एंकर हम उस समय लेकर आ गए थे, आज भी मेरे यूट्यूब के ऊपर होगी. तो हम लोग इतना फास्ट चल रहे हैं, पर ठीक है हम एक वो हमें जो फास्ट ग्रोथ जो चाहिए अलग वाली, उसके अंदर हम नहीं भागे कि Hmm. हमें डमी, हमें फॉलोअर्स चाहिए या हमें वो चाहिए. हम रियल रीच हम अलग तरीके से पहुंचाते हैं. Organic growth. ऑर्गेनिक ग्रोथ भी चाहिए और हम ऑर्गेनिक के जरूरी नहीं कि मैं उसी प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, बाकी तरीके से हम लोगों को तक उसका रीच देते हैं कि भैया ठीक है. आज इफ यू जस्ट सी आईटी वॉइस को इकोनॉमिक्स टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स मीडिया पार्टनर बनाता है आउट ऑफ राजस्थान इवेंट्स के अंदर. Hmm. दैट्स आर रीच.
जाइटेक्स करके जो ग्लोबल जो सबसे बड़ा इवेंट होता है, जो इस बार इंडिया में भी है नेक्स्ट ईयर, उससे पहले बर्लिन में हो गया, दुबई में हो गया, मोरक्को में हो गया, मतलब आईटी वाज द मीडिया पार्टनर देयर आल्सो। तो लवली। उनको क्योंकि बिकॉज आर रीच इज जेन्युइन रीच, और उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, और जो रिजल्ट दे वांट हम देते हैं। तो एक मीडिया इसलिए निकाली कि ठीक है, और एक पैशन था। एंड तो योर पैशन टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी कि बस इट्स अ पैशन टू टेक्नोलॉजी और पैशन टू दिस मीडिया। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं वो पंच से बात कर रहे थे राजस्थान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एकेडमी में, आपने बताया था मेरे को बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट करने का मौका जो मिलता है। तो इन 2014 में मैंने डॉक्टर रिचर्ड मैथ्यू स्टॉलमैन, यू जस्ट गूगल इट द नेम, डॉक्टर रिचर्ड मैथ्यू स्टॉलमैन, ही इज ए यूएस पर्सन, वी ब्रिंग इन इंडिया। जयपुर में मैंने उसका सेशन किया, विद्या आश्रम में किया था, प्रताप ऑडिटोरियम में। आई वॉज से बहुत बुरा लगा, गवर्नमेंट का जीरो सपोर्ट, ऑडियंस समझ नहीं पाई। और उसको अगर मैं गूगल करता हूँ, विकीपीडिया पे देखता हूँ, तो केरल की जो लिटरेसी जो बड़ी थी, दिस मैन इज बिहाइंड ऑफ दैट। उसने फ्री फॉस का प्रेसिडेंट है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, जैसे अभी विंडोज कहते हैं, विंडोज इज द पेड ऑपरेटिंग, लाइनिक्स इज द फ्री, यूनिक्स फ्री। तो ये इसकी मुहिम थी कि मैं फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्री वो सारी चीज मैं दूं। केरल के 18,000 स्कूल के अंदर से उसने माइक्रोसॉफ्ट को हटा के और फ्री ओएस पे लेकर आया था। और केरल की लिटरेसी कितनी बड़ी थी, क्योंकि वो मनी सेव हुआ था केरल की गवर्नमेंट का उसका। इसका मैंने जयपुर सेशन किया, गवर्नमेंट वाज नॉट देयर, सेशन वाज टू गुड, बहुत अच्छा गया, पर वो चीज नहीं आई, फील हुआ मेरे को नहीं ठीक है। अब इसी तरह से मैं कहूँगी, मैंने कई जब राजस्थान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने एक अवार्ड निकाला, राजस्थान रत्न डॉट भारत। कैन यू इमेजिन कि हम अब इंडिया की जगह भारत कह रहे हैं। और इंडिया के अंदर अब क्या है कि मल्टीलिंगुअल डोमेन्स आ चुके हैं, हिंदी में, गुजराती में, इनमें, तो डॉट भारत के नाम से आ रहा है। तो डॉट भारत गुजराती में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो हमने क्या कि इसको प्रमोट करने के लिए वी हैड स्टार्टेड विद द अवार्ड राजस्थान रत्न। तो इन 2024 वी हैड ऑर्गेनाइज्ड वन दिस इवेंट, राजस्थान रत्न डॉट भारत, और इसके अंदर में 25 डिग्निटीज को वी हैड गिवन दिस अवार्ड। दैट टाइम वासुदेव देवनानी वाज द चीफ गेस्ट, और अपने आईटी सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह, वो भी इवेंट में थे। वी गिव दिस अवार्ड टू, नाम मैं ऐसे ऐसे लूंगा तो आपको सोच के सरप्राइज होगा, जो इस अवार्ड को लिए हैं। टैली के ओनर भरत गोयनका, नापतोल के ओनर मनु गोयल, इंडिया मार्ट के ओनर ब्रिजेश सिंह, सत्यम और इसका जो मर्जर कराया था टेक महिंद्रा का, सीपी गुंडानी, डीपी शर्मा यूएन डिप्लोमेट, राजेश दोषी ही इज ए जेब्रोनिक्स ओनर। मतलब मैं 25 लोगों को हमने दिया था, सारे बिग शॉट्स, दे केम एंड टेक दिस अवार्ड्स। व्हाट वाज द बिहाइंड दिस, कि जो राजस्थान की मिट्टी से निकल के जिसने राजस्थान के बाहर या इंडिया में कहीं भी काम किया है, ऐसे 12 जने, और 13 जने जो राजस्थान में रह के आईटी को ग्रो कर रहे हैं, उनको हमने अलग से रिकॉग्निशन दिया। और वो इतना प्रीशियस अवार्ड बना। अब उसका सेकंड एडिशन भी हम लेके आएंगे। मतलब लोगों से जुड़ने के लिए मेरे को ऐसे रास्ते निकालने पड़े। But these all are very innovative because या you are वो जो कर रहे हैं and it's a, these are genuine because जो उन्होंने contribute किया is a recognition and या what people need कि more recognition better they will more connect with more people right यही तो एक marketing का एक golden opportunity होती है कि आप उनको तो एटलीस्ट वो कीजिए जो उन्होंने किया जिन्होंने ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं और जहाँ पे इंडिया एक स्टेज पे पहुंचा है। बिकॉज इंडिया का देखो, टू बी फ्रैंक, एक मैं आपको एक और कहता हूँ, हम्म राजस्थान के अंदर मेरे को थोड़ा सा बहुत फील होता है कि राजस्थान के अंदर आईटी के ऊपर जो है पॉलिसीज और ये वगैरह थोड़ा सा बहुत पीछे है हम लोग। इंडिया जो आज की डेट में एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी एंड आईटीएस का, इट्स समवेयर अराउंड 11 लाख करोड़ बक्स, 11 लाख करोड़ का हम आईटी सर्विसेज और आईटी की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया। राजस्थान का इसमें स्टेक कितना होना चाहिए, कैन यू इमेजिन? एटलीस्ट 15% तो अगर पूरे पूरे इंडिया के हिसाब से देखें तो 15% होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टेट है, हाँ। पर आप इसको एकदम लो लेवल पे लेके जाओगे तो कितना लेके जाओगे? 15 तो बहुत ज्यादा है। 5% एटलीस्ट वही कंसिडरिंग। मैंने लो कहा था। अच्छा ये भी ज्यादा है तो आप ही बताइए सर मतलब 0.38%।
3800 करोड़, 11 लाख के अंदर हमारा कितना स्टेक है? 3800 करोड़। Oh, and this is इट्स शेम। negligible. It's हाँ, negligible. और वेयर वी आर जस्ट, हम गा रहे हैं हम स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भैया द रियल फैक्ट्स एक्सपोर्ट दिखा रहा है, फिगर्स Hmm. दिखा रहे हैं। Hmm. गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के लोग बाग के अंदर डीओआईटी इज द वन ऑफ द थिंग्स। राजस्थान के अंदर डीओआईटी के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं और बाकी स्टेट में कितने एम्प्लॉय है, इसका भी एक बार कैलकुलेशन कर लेना। वी आर Hmm. पेइंग मोर देन अदर स्टेट एंड लेट्स ग्रोथ इज देयर। ई कॉमर्स, गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस इज टू गुड। ई गवर्नेंस Hmm. हमारा राजस्थान का बहुत अच्छा है, Hmm. पर आईटी ग्रोथ नहीं है। कोई आईटी पार्क नहीं है। कोई आईटी का मतलब उस तरह से नहीं जैसे आप बाहर देखते हैं। डीएलएफ देख लो, पूना का मगरपट्टा देख लो, बेंगलोर देख लो, हमारे सारे मिनिस्टर सारे ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं। Hmm. इतना बड़ा हमने यहाँ पे डेटा सेंटर बना रखा है, इसकी अगर कभी वैल्यूशन या वो करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये मेरा पेन पॉइंट था और इसी के लिए आईटीओज आया था। और आईटीओज आज भी जो ना गवर्नमेंट के साथ में मिलके, गवर्नमेंट एक अलग टास्क कर रही है। इतने 35 लाख करोड़ के जो एमओयू है, कैन यू इमेजिन, उसमें से कभी पूछना कि आईटी के एमओयू का सर इसमें स्टेक कितना है? Hmm. सॉरी Uh, टू से, मैं खुद बीजेपी का हूँ, बीजेपी का वोटर हूँ, गलती मेरे को भी फील होती है, पर गवर्नमेंट का इसके पीछे ध्यान नहीं है। और वेयर एज वी हैव द लॉट्स ऑफ द रिलेशन विद दिस, इतने बड़े बड़े लोगों से रिलेशन हैं, दे आर कीन टू वर्क इन राजस्थान, पर देयर इज नो प्लेटफॉर्म, yeah, yeah. And कनेक्टिविटी नहीं। ये आपके पास में कभी connected. आप देखेंगे भी ना तो आपके पास में स्पीकर्स भी लिमिटेड ही मिलेंगे, Got it. बाहर के बड़े बड़े स्पीकर्स। हाँ, वन ऑफ द गुड इवेंट इज डन बाय दिस टाई ग्लोबल ने एक बहुत अच्छा इवेंट किया अभी, और आई वाज सरप्राइज टू सी कि मेरे को वहां पे 2 नाम और मिल गए। विजय शंकर त्रिवेदी, एनवीडिया के वाइस प्रेसिडेंट, ही वाज फ्रॉम शायद माउंट आबू से पढ़ के निकले हैं। Oh, okay, okay. तो मतलब सोच के लगता है एनवीडिया का यार वाइस प्रेसिडेंट, और ही वाज देयर इन जयपुर फॉर 3 days। Hmm. अमेजिंग। टाई का वो इवेंट बहुत अच्छा लगा, वहां पे अच्छे अच्छे टाइकॉन्स आए थे। Hmm. बट राजस्थान Okay. की ग्रोथ बहुत पीछे है। और जिस हिसाब से जैसे आपने बताया एक बिगेस्ट स्टेट है, टैलेंट की कमी नहीं है। फेवरेट मतलब व्हेन एनीवन से राजस्थान तो पहला जो इमेज आती है वो डेजर्ट्स की आती है, बट इफ यू लुक एट द जयपुर इट्स गेटिंग डेवलप्ड राइट। ये जो काफी कॉर्पोरेट भी उस पे फोकस है, टायर 2 में आके दे आर बिल्डिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आई टॉक अबाउट जेनपैक्ट, देयर इज अ बिग बिल्डिंग व्हिच दे हैव स्टैंडर्ड आउट। सो बट अगेन द पॉइंट हियर इज कि वो जो मिसिंग लिंक जो भी आपने जो भी पॉइंटर्स दिए हैं, अगर ये कहीं से थोड़ा सा कवर हो जाए, आई थिंक द राजस्थान हैज अ ह्यूज आई पोटेंशियल। सपोज यू हैड विजिट, तुमने दुबई देखा है? या दुबई की तुमने पुरानी पिक्चर भी देखी होगी, पुरानी फोटोज भी देखी होगी। या शायद वो 90s डेजर्ट ही था ना? एग्जैक्टली। या डेजर्ट ही था ना? डेजर्ट के अंदर अपॉर्चुनिटीज किसने निकाली? वहां द की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट यस, एंड दे हैव अ विजन अ- टू बस मेक इट अ बिजनेस विजन, हब। देखो विजन, विजन यही होता है। और हमारे यहाँ पे विजन क्या, भी 5 साल में काम को लूट लूंगा, या 5 साल तुम काम कर लो, या 5 साल हम काम कर लें। दैट्स वाज नॉट अ विजन यार। हम्म। पॉलिसी शुड, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए आपके पास। आज मेरे को एक अच्छा लगता है मोदी जी सिंह, भारत 2047 देख रहे हैं वो। हम्म। तो विजन हमारे पास 20-25 साल का आगे का विजन ले रहे हैं। ये हमारे पास 5 साल का विजन नहीं होता। यहाँ प्लानिंग ये है कि आपके सड़कों पे अभी शॉप्स बन जाती है और आपको सारी शॉप्स तोड़नी पड़ रही है। भाई बनी क्यों? ट्रू, ट्रू। बनी क्यों भाई? आप इसके लिए जो उस समय गवर्नमेंट का जो अफसर था या गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट था, जिस समय ये बनी, आप उसको पेनल्टाइज तो कर दीजिए, हम्म। उसका पेंशन बंद कर दीजिए, उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दीजिए। ये सारी चीज सुधर जाएगी, एक ग्रोथ प्रॉपर वे में होगी, प्लान सिटी प्रॉपर वे में बनेगा। आज भी गवर्नमेंट का मेरे को सोच के सरप्राइज होता है, 30 फीट रोड्स के ऊपर आज भी कॉलोनी काट रहे हैं। 2 कार नहीं आ सकती, गवर्नमेंट हम्म। अप्रूव कर रही है आज भी। दिस वाज द सेम विजन ऑफ आवर गवर्नमेंट यार। हम्म। वी यस। आर हैप्पी टू कि हमारे पास में उस समय राजा जयसिंह हुआ करते थे, जिनकी आज भी मैं रोड देखूंगा तो 120 फीट की रोड थी, 200 फीट की रोड हम्म। है। हम्म। चांदपोल के अंदर भी देख लें या कहीं भी आप देखें जयपुर में, तो इतना बड़ा हम्म। विजन उनका 1727 में था। करेक्ट। आज हमारा गवर्नमेंट का विजन 300 साल बाद में 30 फीट पे है। हम्म। दिस इज द प्रॉब्लम इन ग्रोथ। सोने की चिड़िया बनाने के पीछे ये प्रॉब्लम्स हैं। हम्म।
Yeah. विजन Yeah. चाहिए, विजनरीज होने चाहिए। Vision and second thing execution, right? ये या जो अभी आपने बोला, जो जो इमीडिएट जो एक्शन लेने हैं, पेनल्टीज हैं, या जो भी एक्शन लेना, राइट? या वो जो कुछ भी, अगर कोई आज एक शॉप भी बनती है तो एक रात में तो बनती नहीं है। नहीं इट्स इट्स बनती। यू नो एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीवन इज विजिबल, you know and the only thing is why the action has not been taken. So yeah, that's a different topic, I know. या And it's still required a lengthy discussion. But I want to take, first of all, congratulate ICPL to get appointed as one of the DCRA, right? या Digital Connectivity Rating Agency. So, मैं from you, एक समझना चाहता हूँ, ये DCRA है क्या for our audience, and what ICPL is contributing to this, and ये किस विजन के साथ आप इसको अलाइन करते हैं, गवर्नमेंट के या ये टेलीकॉम रेगुलेटरी के? देखो, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग कि द पॉलिसी शुड बी रिक्वायर्ड एनी ऑफ द टाइम। क्योंकि आज हमारी लाइफ में क्या नेसेसिटी हुआ करती थी? पानी, बिजली, सड़क। करेक्ट। पहले रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, सड़क। और आज की डेट में हो गया कि पानी, बिजली के साथ साथ हमारे को क्या चाहिए? कनेक्टिविटी। और इट्स कनेक्टिविटी विद द रोड भी थी, और नाउ द कनेक्टिविटी इज विद द डिजिटल कनेक्टिविटी। आज विदाउट मोबाइल या विदाउट इंटरनेट हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीज जीरो हो जाती है। क्योंकि आज की डेट में, पहले की क्या होता है कि आज हमारे जो रिलेशंस भी जो है ना, 99% आर रिलेशंस आर द डिजिटल रिलेशंस। आज हमारे पास में रियल रिलेशंस नहीं है। इन योर मोबाइल, इन माई मोबाइल, वी हैव थाउजेंड ऑफ कनेक्शंस, नंबर्स होंगे। हम उन सबको होली, दिवाली, सब पे हम ग्रीट्स कर देंगे। इट्स ए डिजिटल रिलेशंस। रियल रिलेशंस भी हमारे बहुत लिमिटेड हो गए हैं। तो अब ये सारे रिलेशंस के लिए गवर्नमेंट ने भी सोचा, यार ये रिलेशन भी हो गया है, सब डिजिटल हो रहे हैं, तो अब एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी चाहिए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज के अंदर दे हैड ट्राइज वर्किंग फ्रॉम लास्ट सेवरल ऑफ ईयर्स। और क्योंकि ट्राई सारी रेगुलेटरीज को मेंटेन करती थी, तो उन्होंने वर्क किया कि ये डिजिटल कनेक्टिविटी एक रेटिंग बनाया जाए, एक सेम प्लेटफॉर्म बनाया जाए। बिकॉज जो कस्टमर इज डिमांडिंग, क्या उसको मिल रहा है? और जो मोदी जी की डिमांड है कि मेरे को डिजिटल इंडिया बनाना है, क्या उसके पीछे काम हो रहा है? डिजिटल इंडिया बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की काइंड ऑफ द पॉलिसीज होनी चाहिए, इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस होने चाहिए। ये सब प्रोविजंस आर देयर, बट इसके पीछे कोई रेगुलेटरी नहीं थी। ट्राई बिकेम ए रेगुलेटरी 2014-24 के अंदर रेगुलेटरी आई। आने के बाद में दे हैड जस्ट स्टार्टेड, और उन्होंने क्या किया कि कुछ एजेंसीज को अपॉइंट करना चालू किया एज पर द उनके टेंडर पॉलिसीज जो भी थी। वी अप्लाइड, और अप्लाई करने के बाद में बिकॉज आर एक्सपीरियंस इज गुड, वर्किंग इज गुड, और हमें पैन इंडिया के लिए इसको अपॉइंट किया गया। क्योंकि आज की डेट में इफ आई जस्ट, मेरे को आज सपोज कि मेरे को हॉलीडे बनाने जाना है, किसी होटल में जाना है या किसी रिसोर्ट में जाना है, बट इफ आई जस्ट कम टू नो कि यार वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं आएगी, या मेरे को कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, बड़े बड़े बिल्डर बहुत सारे बड़े बड़े अखबारों में देते हैं, वहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टी बाय करनी, बट क्या मैं, मेरे को आज की डेट में मालूम है कि वहाँ मेरे को कनेक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या वो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे? इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर, क्योंकि आज आफ्टर द कोविड वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चालू हो चुका, तो कनेक्टिविटी चाहिए थी लोगों को, पर कनेक्टिविटी के पीछे कोई फ्रेमवर्क नहीं आ पाया था। नाउ द फ्रेमवर्क कम फ्रॉम द ट्राई, एंड वी एज हैप्पी टू से कि हम पैन इंडिया के लिए अपॉइंट हुए हैं, और हमारे पास में जो डिजिटल कनेक्टिविटी जो है, हम इसकी ऑडिटिंग करने की एजेंसी बने जो सिंगल स्टार से लेकर 5 स्टार रेटिंग करती है। इफ एनीवन, आज की डेट में आप किसी होटल में जाओगे, यार ये 5 स्टार होटल जाना, तो यू आर जस्ट टेक इन माइंड कि ये फैसिलिटीज के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो सेम एज डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग जो है, उसके अंदर ये आ जाएगा कि भैया इफ दिस प्रॉपर्टी इज गेटिंग ए 3 स्टार, तो इसके अंदर ये चीजें मिल सकती है। इट्स अ 4 स्टार, इसमें ये मिल सकता है। ये 5 स्टार है, तो इसको मेरे को हर तरह की कनेक्टिविटी की, यहाँ पे मल्टीपल मेरे को इंटरनेट भी प्रोविजन में रहेगा, सारे जो अपने टीएसपीज हैं, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी आई, और वी आर हैप्पी टू से कि हमारी कंपनी इसको पाने में सक्षम भी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि हम आज की डेट में जयपुर की एक बड़ी प्रॉपर्टी को रेट भी कर रहे हैं, और उसके हमने 2 लेवल कंप्लीट भी कर लिए हैं। इफ यू वांट, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वो शायद हो सकता है कि इंडिया की पहली प्रॉपर्टी हो जाए जो डीसीआरए की रेटिंग में आ जाएगी। और वी होप कि हम उसको 5 स्टार रेटिंग पे लेकर आए। कुछ उनके अभी जो इश्यूज आए हैं ऑडिटिंग के, हमने बताया है कि सर ये थोड़ा सा आप और करा लेंगे, तो वी विल डेफिनेटली कि यू विल द फर्स्ट, और 5 स्टार रेटिंग हो जाएगी बिल्डिंग। इसके अंदर ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स
सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल, होटल्स, एजुकेशन सेंटर्स, इवन दो कॉरिडोर्स, स्टेडियम्स, रेलवे कॉरिडोर्स, एक्सप्रेस हाईवे, सबके ऊपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है और उसके लिए रेट कर रही है। उनका मानना है कि अगर ये डिजिटल इंडिया बन जाएगा तो द टाइम इज द मनी, तो हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो मूवमेंट्स होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा, डिसीजन फास्ट हो जाएंगे, वर्किंग के अंदर जो है पारदर्शिता कहूँ तो क्लियरिटी जो है वो बहुत अच्छी, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो बेस्ट वे है। तो उसके लिए अब हम लोग वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है, और वी होप जो हमें 5 साल के लिए लाइसेंस मिला है, हम बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज और हर स्टेट के अंदर इसको पहुंचा पाएंगे। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, टीआरएआई जो रेगुलेटर है, उन्होंने अपॉइंट किया है आईसीपीएल को। आईसीपीएल वर्क एज एन ऑडिट कंपनी जो चेक करेगी एक बिल्डिंग के अंदर या एक्सप्रेसवे जहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी है या नहीं है, एंड बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट द ऑपरेटर्स will take the action to make that particular building digitally connected or improving the digital connectivity within that particular premises. So it means what I immediately understand as a user, if I am sitting indoor, मैं एक इंडोर बिल्डिंग के अंदर हूँ, तो जो मेरी जो प्रॉब्लम आती थी बार बार कि मेरा नेटवर्क नहीं है या वॉइस क्रैक होती है, जो टिपिकल प्रॉब्लम, थ्रूपुट तो मैं बाद में, या यूट्यूब की स्ट्रीमिंग तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अगर एक बेसिक पॉइंट के लिए बार बार मुझे बालकनी में जाना पड़ता था, सो so now you will be giving us, the ICPL will be giving us a complete overview कि what exactly the real condition is, and in this way जो डिजिटल वाला पार्ट है और जो यूजर की सेटिस्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस, तो दिस इज समथिंग विच यू आर कंट्रीब्यूटिंग एंड improving that particular thing by taking the immediate action, talking with the relevant stakeholders. So that's the whole scope, which is very important and very crucial scope, which I can visualize. So is my understanding correct? परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज इफ जब से आपने कहा कि मेरे को अंदर इंडोर में नहीं आ रही, तो फॉर दैट द आईबीएस इज देयर, इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस हम उसको कहते हैं। तो इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस के लिए वी जस्ट अप्रोच टू द प्रॉपर्टी मैनेजर कि सर आपके यहाँ पे ये सारे इश्यूज है, आप बिल्डिंग सॉल्यूशंस लगा लीजिए, जितनी भी टीएसपीज हैं उनकी सारी फ्रीक्वेंसी आपके पास में आएगी, और आपके पास में आपका जो यूजर है, आपका जो भी कस्टमर है, उसको एक लाइव एक्सपीरियंस जो उसको चाहिए वो उसको पूरा पूरा मिलेगा। तो ये तो हो गया टीएसपी से रिलेटेड। सेम एज जो आईएसपीज है, आईएसपीज भी जो है आज की डेट में आपके जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू या अदर जो आपका जो वाईफाई। वाईफाई के थ्रू जो आपको जो दे रहे हैं, तो उनके लिए भी मल्टीपल प्रोवाइडर शुड बी देयर। तो किसी एक का नहीं आया तो दूसरे का है, दूसरे का नहीं आया तो तीसरे का है, तो मल्टीपल प्रोवाइडर्स भी वहां पे रहे, तो आपकी कनेक्टिविटी को हम मेजर कर पाए और कनेक्टिविटी आपको प्रॉपरली मिल पाए। तो दैट वाज द रीजन, क्योंकि आज इफ आई से मोबाइल हर कोई आदमी यूज कर रहा है, मेरे पास में भी है, सबके, मैं सैमसंग कर रहा हूँ, और हम सबके पास में क्या कहने वाला भैया 5G कनेक्टिविटी मिल रही है। आर यू गेटिंग द 5G? It's written on the mobile, that's it. नहीं क्या वो 5G की अगर अपलोड डाउनलोड स्पीड का कभी आप चेक किया आपने कभी? हाँ, मतलब जो लिखा है और जो आता है वो तो हम सबको पता है। सबको पता है। तो हम पे तो 5G का कर रहे हैं ना, क्योंकि जितने भी टीएसपी जो है, जिनकी भी आज की जो ऊपर जो उनके प्लान चल रहे हैं, जो सारे दिखा रहे हैं, उस प्लान में तो 5G लिखते हैं ना, 4G 5G। कभी वो 2G और 3G तो नहीं लिख रहे ना। व्हेन जी। आई एम पेइंग फॉर ए 5G और 4G, और अगर हमको 2G मिल रहा है, तो कस्टमर के साथ में धोखा नहीं है क्या? यस यस एग्जैक्टली, एंड तो जैसा। फॉर दिस डीसीआरए के साथ में जब कस्टमर के पास में समझ में आएगा कि इसके पास में 2 स्टार रेटिंग है, तो भाई साहब यहाँ मेरे को सर्विसेज से धोखा हो रहा है। इसकी 5 स्टार रेटिंग है, यहाँ मेरे को, मेरे जो भी, मैंने जो सर्विसेज के लिए मैंने पे कर रखा है, मैं 100% गेन कर रहा हूँ। दैट्स देयर। तो इसके लिए प्रॉपर्टी मैनेजर को आईबीएस सॉल्यूशंस अगर नहीं है तो आईबीएस सॉल्यूशन में ध्यान देना पड़ेगा। अभी वो क्या करता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, क्या करेगा भैया, मैं जैगवार की फिटिंग लगा रहा हूँ, सोमानी की फिटिंग लगा रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ। कभी भी उसने लिखा है कि मैं मॉलेक्स की केबल लगा रहा हूँ, या मैं डी-लिंक की लगा रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको ओएफसी दे रहा हूँ, ये कहीं पे कोई लिख रहा है? नहीं लिख रहा, क्योंकि डिजिटल बिल्कुल। उनके दिमाग में नहीं है। और गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच ही नहीं रही। तो ये राइट। इसके लिए ट्राई गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्क किया, और अब ये रेगुलेटरी ट्राई को दी, और ट्राई इज वर्किंग फॉर दैट, और ट्राई बहुत
अच्छा काम कर रही है। ट्राई इंडिया में 6 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके लिए हम लोग खुद भी आसाम भी जाके आए हैं, मैं रायपुर जाके आया हूँ, दिल्ली में हो गया, जयपुर में हो गया, मल्टीपल प्लेसेस पे वी आर टेकिंग द सेशंस। अब लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, क्रेडाई को भी अवेयर कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं कि अभी तो क्या है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन मूव हो रही है, और सूनर लेटर जब ये चीज चालू होगी तो ईमानदारी से कहूंगा कि डिजिटल इंडिया इंडिया की जो है इकोनॉमी को बहुत फास्ट वो कराएगा। और इसके लिए एंड सारे बिल्डर्स को, सारे प्रॉपर्टी मैनेजर्स को सपोर्ट करना चाहिए। एंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आया है कि अगेन अगर मुझे ये पता चल जाए किसी प्रॉपर्टी को ओन करने या बाय करने से पहले कि इस प्रॉपर्टी की मेरी रेटिंग कितनी है, मीन मेरे वहां पे डिजिटली है, तो वो भी एक एक हुक है या एक सेलिंग पॉइंट है फॉर एनी ऑफ द बिल्डर कि वो बोल सकते हैं मेरी ये 5 स्टार रेटिंग है, इसका मतलब एवरी हुक एंड कॉर्नर यू विल गेट अ नेटवर्क कवरेज। हमने वो प्रोविजन कर रखा है, आप आओ और वर्क फ्रॉम होम जो भी आपको करना है डिजिटल सर्विसेज लो, बट आई विल बी चार्जिंग यू सम एक्स्ट्रा अमाउंट पर स्क्वायर फीट वॉट एवर जो हमारे इंडिया में चलता है, एंड वन इट इज डन पीपल आर रेडी टू पे दैट मनी एज वेल बिकॉज दैट इज समथिंग विच दे आर लुकिंग फॉर, that's तो a फॉर केस ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर इफ यू जस्ट गिविंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, मेरे ख्याल से उसके इन हाउस जो उसका एक्सपेंसेस आएगा, इफ इज वर्किंग फॉर ए 1 लाख स्क्वायर फुट का कोई काम कर रहा है या 50,000 स्क्वायर फुट के लिए कोई काम कर रहा है, तो आई सपोज वो 20 या 30 रुपए 50 रुपए स्क्वायर फुट से ज्यादा उसका एक्सपेंसेस नहीं है टू गिव ऑल द सर्विसेज। बट फॉर गिविंग दिस 5 स्टार रेटिंग का जो अगर प्रोविजन लेता है, तो ही कैन चार्ज 200 and 500 रुपीज एडिशनल स्क्वायर फीट। yeah, and people उसका are willing एडिशनल to अर्निंग pay. मिल रही है। और Hmm. फर्स्ट द थिंग कि ही इज कमिंग विद वन मोर यूएसपीज Yes, कि yes. मैं डीसीआरए रेटेड मैं बिल्डिंग लेके आ रहा हूँ। Huh. And getting the approval from the TRAI, which is क्या, a renowned, so and और इसमें who is a ट्राई का regulator. भी है कि भैया जो द बिल्डिंग विच इज अभी अपकमिंग बिल्डिंग्स है या जो बिल्डिंग्स बन चुकी है, वो कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। अपकमिंग बिल्डिंग वालों के लिए ज्यादा फायदा है कि उसका इन्वेस्टमेंट कम होगा, जो बन चुकी है उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है उसको। Hmm. Hmm. बट Yeah. ये सून एंड लेटर लेना पड़ेगा। वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज अभी जैसे आप बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था जब हम यूएस में जाते हैं या हम्म। कहीं भी डेवलप कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे अगर AT&T और टी मोबाइल के बीच में जो फाइट होती है तो वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पे होती है। वहाँ या पे हम वहाँ पे ये नहीं बोलते कि कवरेज नहीं आ रही, वहाँ ये बोलते हैं कि किसकी सुपीरियर क्वालिटी है। तो आई रिमेम्बर कोई बात करता है HD, अल्ट्रा HD, दीज आर द या टर्मिनोलॉजी यूजिंग, तो वो बेसिक की तो बात ही नहीं करते। नाउ इंडिया में आके आरपू पे लड़ाई होती है, अच्छा इसका 5 पे कम है तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाता हूँ, राइट। एवरी डे ऑल्सो वी आर गेटिंग अ कॉल सेंटर्स कॉल्स कि हम आपको अच्छा प्लान दे देंगे इससे कम रुपए में। मैं कहा पहले कवरेज तो दे दो, बाद में दैट्स ट्रू। प्लान देख लेंगे। So that's the difference. But with your initiative and under the directives of TRAI, I'm pretty much sure that digital vision और जो आपने contribute and execute कर रहे हैं, I think that is going to create a really really what you say advancement for India to grow. So thanks for bringing that particular part. It's a Modi ji initiatives. It's not my initiative. Yeah, we are one of the part of that. एग्जीक्यूट आप ही ने अभी बोला कि वो माइंडसेट एंड एग्जीक्यूशन, राइट। Yeah, तो अगर वो एग्जीक्यूशन ना हो प्रॉपरली या वो जो जो वो बोलते हैं अप्रोचेबिलिटी हो रही है, अगर उसको उसी yeah. टाइप नहीं रोका जाएगा तो नहीं होगा। तो ये किसी को तो लेना इनिशिएटिव एंड विद ICPL I'm pretty much sure there are so many new initiative which you will be bringing because जो इंडोर कस्टमर है वो सिर्फ डिजिटल नहीं, they have some more other challenges as well. Hmm. I know we are crossing a time and your busy schedule. I would like to have a one last question, right? If I if you get a power to transform the world, and you have been given a magic wand, so what you want to do? वो ऐसी क्या चीज़ है जो आप जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? देखो, ट्रांसफॉर्म करना इट्स ए वर्ड की मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्म करना, तो आई अगेन वांट टू बिकम ए स्टूडेंट। हम्म। वापिस से विद्यार्थी बच्चा बनना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को वापिस से सीखने का ज्यादा समय मिले, और जो मैं सीखूं देन मैं उसको वापिस से सोसाइटी में दे पाऊं। क्योंकि एज पर द मैं अगर मैं कहूँ तो अपने सनातन में एक चीज है कि मैं पढ़ता था, क्योंकि हमारे आश्रम होते थे 4 आश्रम, बाल हम्म। आश्रम, वापस आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जी। द स्टोरीज बिहाइंड ऑफ दिस कि भैया मैं अभी चल रहा हूँ, गृहस्थ में चल रहा हूँ मैं, उसमें आ जाएंगे। तो
जब आपका गृहस्थ कंप्लीट होता है तो आपको फिर सोसाइटी को रीपे करना पड़ता है द थिंग विच यू हैड अर्न एंड लर्न। हम्म, अर्न और लर्न दोनों जो किया है, अर्न हम्म, किया है तो आप दान वगैरह में जाइए, और लर्न किया है तो उसको शेयर कीजिए। हम्म, तो मैं अर्न और लर्न के पीछे दोनों वर्क करना चाहता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, आफ्टर राइट नाउ मैं शायद 54 के नियर बाई हूँ, 60 के एज के ऊपर अभी तो अर्न और लर्न दोनों ही चल रहा है, और रीपे भी चालू कर चुके हैं। तो ये रीपे लोग बाग करें, जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को भी करना चाहिए, और लोग बाग कर रहे हैं वही मैंने सीखा है कि हम्म, लेके कोई नहीं जाएगा। तो एवरी टाइम लर्निंग टिल लास्ट, जब लास्ट डे भी होगा या लास्ट मोमेंट भी होगा, तभी मैं कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हूँ, और जो अर्न किया है वो यहीं छोड़ के जाऊंगा। so sweet and I'm pretty much sure जो आपकी एक्टिविटीज है, जो आपकी इनिशिएटिव्स हैं, एंड आई कैन रियली सेंस कि वो उसमें आपने जो क्लोज लूप, हम इसको बोलते हैं अपने टेलीकॉम के अंदर क्लोज लूप ऑटोमेशन, राइट? तो वो आपने या ऑलरेडी बिफोर यू स्टार्ट आपने वैसे ही क्लोज लूप उसको पहले से ही ओरिएंट कर रखा है कि यहीं सीखो। एंड लाइक एग्जांपल वेरी, आई थिंक आप इस पे आप भी एग्री करेंगे और आप तो फॉलो करते हैं, जो लॉयल्टी वाला जो कंसेप्ट आपने क्रिएट किया, तो वो जो जो न्यू लीडर जो बन रहा है ओवर द टाइम, जो कल को वो भी बड़ा होकर कुछ और ऐड करता है, वो भी वही मैसेज पूरी कम्युनिटी को देगा। तो उसके नीचे जो जो डायरेक्टिव्स होंगे वो लोग भी वैसे ही लॉयल्टी या वो पर्सनल कनेक्ट एंड वो डेडिकेशन, वो अपनापन, मैं हूं ना कंसेप्ट, तो all these points is something which you are already sharing, while doing your execution on the go. But this is something which you are already started giving back to the society, and honestly मेरे को काफी रिफ्रेशमेंट हुआ, because there are so much point every day, there are struggles, your business pressure, you have execution pressure, and ये सब चीजें पता सब कुछ होती है, हर एक को होती है। आई एम श्योर जो 50,000 पीपल हमें जो सुन रहे होंगे उनको भी पता है, लेकिन कितनों को याद है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और याद के बाद कौन सा एग्जीक्यूशन होगा वो तो शायद फ्यू नंबर्स ही होंगे। तो एग्जीक्यूशन हर कोई आदमी करता है, हर लाइफ के अंदर करता है, पर क्या है, जब उसको फील आता है ना, यार ये करने से कुछ अच्छा हो गया। हम हर बार किसी संत महात्मा के वहाँ पे जाके सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, किसी पिक्चर को देखते हैं तो हम अपने आप को हीरो मान लेते हैं। कभी हम ये तो हम्म, वो फील हमारे को उस इंस्टेंट टाइम तक आता है। पर व्हाट अबाउट आफ्टर द सिनेरियो, बाहर निकलने के, पिक्चर हॉल के निकलने के बाद में क्या, अरे यार उसका पेमेंट करना था, यार उसकी कॉल थी, उसकी ये थी, हम उसके अंदर वापस उस जाल में फंसते हैं। हम्म, हमें उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी शेड्यूल। हाँ, वन थिंग यू कैन डू द थिंग्स कि पहले हम कहते थे कि हम योगा करते हैं, योगा और आज की डेट में उसका इंग्लिश नाम है मेडिटेशन। हम्म, आप डू वन थिंग, इफ यू कैन डू, गिव योर 30 minutes टू योर सेल्फ इन योर लाइफ। सिर्फ 30 मिनट देने हैं। हम्म, 30 मिनट अगर आप एक आदमी ये काम कर ले कि 30 मिनट तक उसको सिर्फ वॉक करनी है, हम्म, वॉक विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी फैमिली मेंबर, विदाउट एनी फ्रेंड्स, अकेले वॉक करनी है 30 minutes। If हम्म, any person can do this thing for 30 days, आई चैलेंज कि उसकी लाइफ में ना कोई कभी कभी प्रॉब्लम आएगी, और ना किसी को ग्रोथ रोक पाएगा। मैं हम्म, हूं ना थ्योरी इज दिस, कि मैं मेरे से बात नहीं कर पा रहा, मैं मेरे को नहीं पहचान पा रहा, मैं मेरी पावर को नहीं गेन कर पा रहा। गिव हम्म। 30 minutes टू योर सेल्फ। वंडरफुल, वंडरफुल। एंड वही रोजमर्रा वाली जिंदगी, वही उसके नाइन अंदर टू क्या है कि फाइव 30 मिनट्स के अंदर आपकी क्या होगा, फर्स्ट 5-10 मिनट्स ही आ जाएगा कि यार मेरे ये आज की प्रॉब्लम थी, ये थी, आप अपने आप से बात कर रहे हैं। फिर ये कि खुद ही अपना डिसीजन निकालो, यार इसका काम मैं कल कर लूंगा, इसका मैं परसों कर लूंगा, और सोने से पहले सारे डिसीजन ले लोगे आप। यू विल गेट ए पीसफुल स्लीप, और मॉर्निंग में आप इतने रिफ्रेश होकर उठोगे कि आपका वर्किंग बहुत फास्ट हो जाएगी, अचीवमेंट्स फास्ट आएंगे। गिव ओनली 30 मिनट्स विथ, सब कुछ छोड़ दो। 24 घंटे में 30 मिनट अपन खुद के लिए तो दे ही सकते हैं। हम हम्म, फैमिली को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, फ्रेंड्स को दे रहे हैं, रिलेटिव्स को दे रहे हैं। गिव 30 मिनट्स टू योर सेल्फ। हाँ, इम्पोर्टेंट। एंड बस एंड वो जो हम बोलते हैं ना, सेट द डस्ट विल गेट सेटल्ड। जब वो या डस्ट सेटल हो जाएगी तो आपको पता होगा कि मैं क्यों इतनी टेंशन ले रहा था, क्यों मेरे को ये तो प्रायोरिटी नहीं है, या इट कैन बस बी और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और होता है, व्हेन वी टॉक विद आवर सेल्फ, जो आई एम प्रीटी श्योर हर एक को होता होगा। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द नेगेटिव इमोशंस,
अरे वो कस्टमर बुरा मान जाएगा, अरे वो एस्केलेशन हो जाएगी, अरे उसको क्या मैं आंसर दूंगा। तो उसके बाद वंस इट गेट सेटल डाउन यू रिमेम्बर, इसका आंसर तो ये है ना, ये इस पे ये मेरी पिच हो जाएगी या ये मेरी डिस्कशन हो जाएगी, तो दिस कैन बी सॉर्टेड, तो यू आल्सो ऑल द आंसर इज एट द बैक ऑफ योर माइंड। देखो, इफ आई से एक एग्जांपल देता हूँ, क्या मेरे पास में पैसे नहीं है पर सामने वाला मेरे को रोज फोन कर रहा है, हम्म व्हाट हैव टू डू? मैं कुछ समय बाद फोन उठाना बंद कर दूंगा। ये लोगों की मेंटलिटी हो चुकी है। हम्म 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 डोंट, जिसको पैसा देना है या जिसका काम करना है उसका प्यार से फोन पिक करें, हम्म उसको एक्चुअलिटी अपनी रियलिटी बता दें। हम्म भाई मेरे पास 10 दिन में पेमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, आई कांट डू एनीथिंग, हम्म यू हैव टू वेट, मैं भी वेट कर रहा हूँ। हम्म उसके बाद भी नहीं आता, वापस आप उसको अपनी रियलिटी बताओ, आदमी मान जाएगा, बट इट शुड बी रियल, हम्म इट्स नॉट ए फेक कमिटमेंट। आप अपनी जब भी रियलिटी को शेयर करोगे तो सामने वाला उसके ऊपर साथ चलेगा। सर आज मेरा बंदा आपको सर्विस देने नहीं आ पाएगा सर, 2 दिन बाद आएगा, हम्म कस्टमर हम्म वेट करता है, वो आपकी कमिटमेंट्स मानेगा। और अगर आपने किसी को कोई कमिटमेंट फेक दे दिया है तो अगले दिन उसको पहले कमिट कर दो कि सर ये गलती होगी, ये सही है, हम्म आपकी हम्म वापस से लॉयल्टी जनरेट होती है। हम एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, ये सबने सुना है। हम्म मत करो, मत करो। और जो आपने सच बोल दिया ना, तो मेरी मेमोरी के अंदर मेरे को एडिशनल याद रखने की जरूरत नहीं है, यार वो जो झूठ हाँ बोला था, इट्स ए हाँ लिमिटेड, मेरी हार्ड डिस्क दिमाग की बहुत छोटी सी है, हाँ तो उसके अंदर रियलिटी रहेगी तो मैं कभी कुछ चीज सोचूंगा ही नहीं। और कहीं हम्म कुछ गलत मैंने भर लिया और भूल गया, तो एक के ऊपर दो, दो के ऊपर चार, मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं, और जो बोलना है सच बोल दो, भूल जाओ, तो भी बाद में आपके वही वर्ड्स रहेंगे। फर्क नहीं और पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म कोई आपकी जान नहीं लेगा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। योर लाइफ इज सेफ, सिक्योर और ऊपर वाले के पास में है। हम्म डू गुड, बस अपना काम करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। पैसा कमाना है, जितना कमाना है, किसी को पैसा कमाना हो तो मेरे पास में आ जाना, बता दूंगा, इतने रास्ते बता दूंगा। ईगो छोड़ के आना, हम्म ईगो छोड़ के आना, एग्री एग्री कमा एंड लोगे पैसा। हम्म एंड एक और बात, बिकॉज जब आप झूठ बोलते हैं या जब आप कुछ आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, वो दिख जाता है। एंड आज के में पीपल अंडरस्टैंड अदर आई द बॉडी लैंग्वेज, देयर इमोशंस, देयर टोन, देयर हाउ देयर वी आर रिएक्टिंग, सबको दिखता है, राइट? सो डोंट गो टुडे। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑथेंटिसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड लोग आजकल आर्टिफिशियल फैक्ट्स को लगाने के लिए वो ऑथेंटिसिटी छोड़ देते हैं, राइट? तो वो बोलते हैं ना, सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन नो वन लाइक्स इट। तो सो वही एक ऑथेंटिसिटी का वर्ड आज के आप बाजार में देखते हो ना, ऑर्गेनिक। हाँ हाँ वह ऑर्गेनिक, भाई ऑर्गेन, तो सब सब वहीं से उग रहा है ना। हाँ करेक्ट, एक ऑथेंटिसिटी देने के वर्ड दे दिए ऑर्गेनिक, तो ये यू शुड बी ऑर्गेनिक योर सेल्फ। आप अपने हिसाब से आप अपने आप को ऑर्गेनिक मानते हो तो डू वर्क लाइक दैट। राइट राइट। बहुत पीस रहेगा लाइफ में, बहुत पीस है, इतना एंजॉय करोगे लाइफ में जितना आप नहीं सोच सकते। Mm. And again, back to your words, work like a coolie and live लिव like लाइक ए प्रिंस। a prince. So these all are interconnected, right? At the end of या the day, what we are doing, we are not saying become a businessman or successful business. Become a honest person, and once you are a person, everything will follow. यू शुड बी हैप्पी इन योर सेल्फ। आपका दायरा आपका बना के रखियो ना। आज मेरी जरूरत है कि मेरे को इतना रुपए कमाना, मैं इतना कमा रहा हूँ। Hmm. एक्सेस इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम। Hmm. एक्सेस कमाने के लिए शायद हो सकता है मेरे को एक्सेस लेबर भी करनी पड़ेगी, एक्सेस एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, और मैं अपनी बॉडी को भी एक्सेस में एग्जॉस्ट करूंगा। तो पहले क्रिएट योर लिमिटेशंस, दिस इज माय नीड्स, दिस इज माय लिमिटेशंस, दिस इज माय स्टेज, और मेरे को यहाँ तक जाना है। हर कोई अंबानी और अडानी नहीं बन सकता। Hmm. हम Right. लोगों की बायोग्राफी जरूर पढ़ते हैं, वो बायोग्राफी मेरे पे नहीं आएगी। और मैं जानता हूँ 90% बायोग्राफी के अंदर जो है ना, क्या लिखा होता है, एवरीवन नोस। तो बायोग्राफी उनकी है, वो ठीक है, वहां तक गुड है। Hmm. वो बायोग्राफी के उस फुट स्टेप को आप नहीं चल सकते। मेक योर ओन बायोग्राफी, और खुद डिसाइड करो मेरी बायोग्राफी ये होगी। Correct. Right. थ्री That इडियट्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। and this is a very powerful message which you have given. And I should not say Gen Zs, but आज के दिन में जो एक नॉर्मल जो मिड एज में भी है, वो भी दे आर ट्राइंग टू कॉपी, एंड व्हेन यू स्टार्ट कॉपीइंग यू लूज योर ऑथेंटिसिटी, राइट? एंड दैट्स ट्रू। वो गिन के सबको दो चार नाम ही है जो जिनको ये फॉलो करते हैं, एंड दे वांट टू बिकम लाइक दैट। इट्स गुड, इट्स गुड टू बी मोटिवेटेड,
but don't stop or don't miss your own flavor, because every person is unique. आपका एक flavor अलग है, उनका अलग है. So बस, but you should know what's the direction and what the outcome which you want to achieve. So, Dr. Tarun, believe me, it's a very, very interactive insights which you have given, right? Yeah. Because generally we talk about, what you do. This type of podcast generally follow, that trend. But I didn't realize that, that we should talk about the business. We should talk, the way you are explaining and you are giving the example. It's moreover, is this podcast is needed for to become a right human. And you started with mindset, that confidence, वो इज्जत वाला, मैं हूं ना, इज्जत को वो पोस्ट वो पोस्ट बॉक्स में डाल दो. Like, these are important things. And today, these are these are the point which is missing big time. And with from a startups till the mid-sized companies owners also, right? So thank you for bringing all these insights, and the way what you say, जो आपने कहा था, जो वो phases होते हैं life के with वाला and other thing. So it's shows your commitment towards yourself, towards your loved ones, your community, which is important. And at the end of the day, what efforts you are making is for developing the Bharat, and these all Yeah. are incredible. And thank you so much for all your insights and for your valuable time. One thing I just add to you Yeah. कि एक और लाइफ में जो है, इफ आई एम गेटिंग दिस ऑल द थिंग्स जो मैंने जो अचीव किया, जो मैंने सीखा, जो मेरे को मिला, दैट्स फ्रॉम माय फादर मदर एंड माय वाइफ, क्योंकि उसके बिना कोई भी आदमी पूरा नहीं होता, एंड माय टू लवेबल सन. कि जो मेरा जो एनवायरमेंट जो बना, जो नीड्स जो उनकी है, नीड्स वाइफ की या बच्चों की हमेशा पैसा नहीं होती हम्म. जिसके लिए हम भागते हैं, हम्म. सेल्फ रेस्पेक्ट की होती है. और डू वन थिंग जिसको करना चाहिए, सुनने के लिए दो कान मिले हुए हैं, बोलने के लिए एक. हर बच्चों की भी प्रॉब्लम सुन लो, उनकी भी सुन लो और समझ लो. जब ये आपके पास में आ गया तो फिर जब आपने उनको समझना चालू किया तो वो भी आपको समझते हैं. तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो लाइफ में रहा, मैंने मेरे फादर्स को फॉलो किया, मेरे बच्चों ने मेरे को फॉलो किया, ये किया. तो ये जो है ना, सुनने की आदत सब में आ गई. आर्ग्यू नहीं करते, बट डिस्कशन करते हैं. वी नेवर आर्ग्यू, वी डिस्कस. लाइफ को अगर बनाना है तो आर्ग्यू नहीं, अपनों के बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं, इट शुड बी डिस्कशन. दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड. Oh, lovely, lovely, and it's applicable for everyone, या right? Even जो communities हैं या organizations है, when you start listening to each and every person, even the person who is at the junior level, you never know कि वो creativity कहाँ से आ सकती है, and that itself create a $1 million business, right? मैं इसमें business नहीं लाऊंगा, लेकिन still, एक creative and एक gelling environment बन जाएगा. So thank you. This is a very important, powerful message. Thanks for bringing that thing, and we wish you best of luck. And we are now you have given me an expectation there ki, every day what will be your new initiative. That is something which we will be waiting eagerly for that. And thank you for your time, Dr. Tarun. थैंक थैंक Thank यू. you. दैट्स अ गुड So, टाइम. thank you so much for your kind words. So until next time, this is Deepak Bajaj signing off. Thank you.